معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ لانا۔ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے۔ سارے جہاں پر چھا گیا ابر کرم ہے، اب آیا رجب ماہ رجب پھر آ گیا رجب۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے میں آمد ہوتی ہے، اور مدنی مذاکرہ کے بغیر تو زندگی میری ادھوری ہے۔ حکمت والے جواب ملتے ہیں۔ پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عرس کیا ہوتا ہے، خواجہ غریب نواز غوث پاک کی 11ویں، بس امیر سنت کی محبت یہاں پر کھینچ لائی ہے، اور یہاں پر آنے کے بعد جب امیر سنت کا دیدار کیا ہے تو دل کی کیفیت ہی چینج ہو گئی ہے۔ ہم نے جب قریب سے دیدار کیا تو اتنی خوشی ہوئی کہ آج دن تک ایسی خوشی کبھی ہمیں ملی نہیں ہے، کبھی کسی بات سے ہمیں یہ خوشی نہیں ملی جو یہاں آ کے ملی ہے۔ جو سامنے بیٹھ کے مرشد کو دیکھنا، مرشد دادی داوے باہو میں لکھ کروڑا حجہ ہو، تو ان کو دیکھ کے ایسا لگا کہ بس ان کو دیکھتے ہی جاؤ، ایسا پیارا انداز، ایسی گفتگو کمال کی کہ بس میں تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی نورانی شخصیت ہے کہ بس دل کرتا تھا جا کے لپٹ جائیں امیر سنت کے گلے لگ جائیں۔ اور رہی علم کی بات، اس میں ہر طرح کا سوال ہوتا ہے، تو ہمارے ذہن میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہر طرح کی ہمیں مل جاتی ہے یہاں آنے کے بعد۔ ویسے ہم مدنی مذاکرہ دیکھتے تو رہتے ہیں گھروں میں ویسے، لیکن یہاں دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے، یہاں سے اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا جب تک مدنی مذاکرہ ختم نہ ہو جائے۔ اگر امیر اہل سنت ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں اتنا خواجہ صاحب کے بارے میں نہیں پتا تھا، مگر ان کی زندگی کے بارے میں خواجہ صاحب کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کیسے عبادتیں کری، کیسے وقت گزارا، کیسے لوگوں کی خاطر جو ہے نا جی دین کی کوششیں کری، جو آج ہمارا دین پھیلا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اور دعوت اسلامی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنی کوششیں کر رہے ہیں، اتنے سب کچھ کہ گھر گھر یہ سارے پیغام پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت پیارا انداز ہے، بالکل آسان الفاظ میں لوگوں کی سمجھ کے مطابق الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک علم دین آسان طریقے سے پہنچ جائے۔ یہ ایسا پیارا انداز ہے کہ ہر بندے کی، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، سادہ مزاج بندہ ہو، ہر کسی کے سمجھ میں آنے والا انداز ہے، اور بہت پیارا انداز ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ادھر آ کے ادھر لوگوں کے ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے ماشاءاللہ بہت متاثر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ بڑے ہی پیار سے، اخلاق سے، محبت سے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس بات پہ ایسے عمل کریں۔ جیسے انہوں نے اسلامی بھائیوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ ماشاءاللہ اتنے اخلاق سے بولتے ہیں کہ ان کو منع کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ وہ آگے کہتے ہیں جی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے اسلامی بھائی مدینہ اٹھیں، ماشاءاللہ اس نام سے پکارتے ہیں، اگلے کا جواب دینے کا، انکار کرنے کا جواز نہیں بنتا ہے۔ بڑے اچھے کام ہے ماشاءاللہ سے دعوت اسلامی کے، یہاں پہ کھانے پینے کا انتظام، سیکیورٹی کا بڑا اچھا ہے، عوام کو بہت اچھے سے وہ سنبھالتے ہیں، اور عوام کی بڑی خدمت کرتے ہیں دعوت اسلامی والے ماشاءاللہ سے۔ پہلی دفعہ ماشاءاللہ میرے اہل سنت سے متاثر ہو کے میرا ذہن بنا، تو جب آئے تھے تو کلین شیف تھے، تو جب ادھر سے گئے تو ماشاءاللہ سنت رسولدار چہرے پہ لے کے سر پہ معاملہ ہے گئے۔ میں بحرین میں ہوتا ہوں، تو بحرین سے میں اسپیشل حضرت صاحب سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ کیوں اتنی محبت حضرت صاحب سے؟ جی الحمدللہ حضرت صاحب کا اخلاق، ان کی جو معاملات ہیں، دعوت اسلامی کا کام، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کے صدقے عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہم لوگ دعوت اسلامی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ دوبارہ پہلے قرآن نہیں تھا سیکھا، فضان اکیڈمی سے آن لائن قرآن سیکھا، الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوا۔ وہ استاد جو ہیں وہ الحمدللہ بڑے زبردست ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ دعوت اسلامی جو دے رہی ہے نا، وہ لوگوں کو سیدھا جنت کا راستہ دے رہی ہے۔ آج ہم عہد کر کے جا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہر مہینے جو ہے نا وہ 3 دن کا مدنی قافلہ جو ہے وہ کریں گے، اور مدنی کاموں کی خوب سیالکوٹ میں اور زیادہ دھومیں مچائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف
جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. نیت سے جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف کی ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے, مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی. نیت نہیں کی تھی, افطار کا ٹائم ہو گیا, افطار کرنا چاہتے ہیں, نیت کر لیجئے. اب بے شک افطار کر لیجئے. البتہ یہ کہ کھانے پینے کے لیے نیت کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. ثواب کے لیے نیت کریں. مناسب طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں. مکروہ وقت نہیں, 2 نفل پڑھ لیں یا وقت کی نماز پڑھ لیں یا کچھ تلاوت کر لیں یا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب چاہیں تو کھائیں پیئیں, سوئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1444 ہجری کے رجب شریف کی چوتھی شب کی مناسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 4. مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج رجب شریف کی چوتھی شب ہے تو وہ رمضان شریف کی یاد اس میں یوں آئی مجھے کہ وہ ہمارے یہاں بڑے بوڑھے میمنوں میں یہ کہتے ہیں رجب جی چوتھی نے رمضان جی پہلی. یعنی جس دن رجب شریف کی چوتھی تاریخ ہوتی ہے, اب جیسے کہ جمعے کو چوتھی تاریخ ہے تو یہ بڑے بوڑھوں کے حساب سے, وہ بڑی بوڑھیاں بلکہ ان کے حساب سے پہلا روزہ جمعے کا ہونا ہے. یہ ان کا اب سے یہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. شرعی طور پر ان اسلامی قانون یہی ہے کہ چاند نظر آئے, یعنی اس کا ثبوت ملے, رؤیت ہلال, انہیں چاند دیکھنے کا ثبوت ملے, جو بھی شرعی تقاضے ہیں اس کے مطابق چاند کا ثبوت ملے تو رمضان شروع ہوگا. اب ہو سکتا ہے جمعے ہی کو ہو جائے. بڑی بوڑھیوں کی باتیں بعض اوقات تجربے کی ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ ضد کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. আসসালামু আলাইকুম. আমি রাসূলুল্লাহর কাছে জানার ছিল শহীদ হযরত খাজা মাইনুদ্দিন চিশতির ওরস মোবারক উপলক্ষে পাড়া মহল্লা ডেকে লাল শালু বেঁধে টাকা পয়সা তোলা হয় এবং সিন্নি করা হয়. এই কাজকে ইসলাম কতটুকু মূল্যায়ন করে? یہ بنگلہ بادشاہ میں شاید سوال تھا, بنگلہ بادشاہ میں سوال تھا کہ 6 رجب کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف کے سلسلے میں محلے داروں کو بلا کر لال چادر کے ساتھ چندہ وغیرہ جمع کر کے شیرنی وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس کی اسلام میں کہاں تک اجازت ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو لال چادر کیوں؟ لال چادر پھرا کریوں چندہ لیتے ہوں گے تو اگر چندے کا ہمیشہ اصول یہ یاد رکھیے کہ اس میں کسی سے زبردستی چندہ نہیں لینا.
ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا سنا جاتا ہے کہ بعض مطلب وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، وہ بھی اس طرح کے کام کر کے چندہ لے رہے ہوتے ہیں لوگوں پر، روب سے، لوگ ان کے روب سے، ان کے خوف سے، ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ گالیاں وغیرہ دے گا یا برا بلا کہے گا، لوگوں کے سامنے ڈیگریڈ کرے گا، تو اس لیے اس کو دے کے ٹال دیتے. تو یہ رشوت ہوتی ہے. تو اگر کوئی خوش دلی کے ساتھ چادر ٹھیک ہے پھرا رہے تو پتہ ہے سب کو کہ خواجہ غریب نواز کی نیاز کے لیے چندہ کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے، جو اپنی خوشی سے ڈالنا چاہے ڈال دے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. مگر یہ لال چادر کی قید ہٹا دی جائے. لال چادر کی ضرورت، کوئی سی بھی چادر نہ ہو، صندوق باکس ہو، کچھ بھی ہاتھ سے لے لیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی سی بھی چادر ہو. اگر لال کو فرض و واجب نہیں سمجھتے، کمپلسری نہیں سمجھتے، تو ویسے ہی لال چادر کر رہے ہیں ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. خواجہ صاحب کی نیاز بالکل جائز ہے، بلکہ کار ثواب. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بات کرتے وقت ہماری اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ، سلام کرتے وقت بھی اس طرح کہتے ہیں کہ السلام علیکم، سلام سلام، اور یہ اس طرح کہنا کیسا کہ السلام علیکم، السلام علیکم کہنے سے کیا سلام کا جواب واجب ہو جاتا ہے؟ اللہ اللہ، اس کی طرف تو پتہ نہیں کسی نے کبھی توجہ دلائی ہوئی ہے نہیں، میں برسوں سے دلا رہا ہوں الحمدللہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ کئی ایک کی اس میں اصلاح بھی ہو گئی ہوگی. یہ ایک سمجھو ایسا مرض ہے کہ شاید 100% احتیاطاً نہیں کہتا، ورنہ اتنا مطلب ویسے کبھی تسلی سے کہیں گے تو صحیح کہیں گے. جیسے مائک پر قاری صاحب پڑھیں گے تو بس ہٹ جاؤ، سمجھے، ویسا پڑھیں گے کہ طبیعت خوش ہو جائے. اور جب یہ نماز میں قراءت کریں گے بلند آواز سے، جہری قراءت، تب بھی مطلب یوں مزہ آئے گا. جب یہ ظہور یا اپنی اکیلی پڑھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات بعضوں کی اسپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ یہ بھی دیکھا کرو. تو خیر حدر میں جلدی تو پڑھا جاتا ہے لیکن حروف چبا جائیں اس کی تو اجازت نہیں ہے نا. مدات ہے، اس کا خیال رکھنا بھی لازم ہے. قاریوں کے نزدیک جو واجب ہے نا مدات، تو ان کا لحاظ رکھنا. تو یہ جو مقرر کی حد قاریوں نے اس کی بھی رعایت کرنی ہے. اور جو بھی یعنی کہ تجوید کے قواعد ہیں ان کا لحاظ تو رکھنا ہوا. حدر بولتے ہیں اس کو جو جلدی پڑھتے ہیں، لیکن ایسی جلدی نہیں جیسے بعض جگہ تراویح میں یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کی طرح پڑھتے ہیں، تو یہ نئی طریقہ ٹھیک. اور کئی جگہ معنی اس میں فاسد ہو جاتے ہیں. فاسد کیا، بلکہ وہ تلاوت ہی نہیں ہوتی، وہ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ جیسے اور ہی ہو رہا ہے کچھ. تو تلاوت تلاوت تلاوت، ایک آیت پڑھے، پورا قرآن نہ پڑھے، صرف ایک آیت پڑھے مگر اس کے قواعد کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، جیسا کہ وہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اس طرح پڑھے، بیڑا پار ہو جائے گا. وہ پورا قرآن اگر غلط پڑھ رہے یعلمون تعلمون تو یہ گلے پڑ جائے گا معاملہ سارا، اور بہت مشکل ہو سکتی ہے. ثواب تو دور کی بات، بہت خطرناک ہے. بعض اوقات ایمان کے بھی مسئلے ہو سکتے ہیں اس میں، اس طرح مطلب پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ قرآن پڑھے تو قرآن کے حکم کے مطابق پڑھیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو جہاں جہاں اس کے ٹھہرنے کے مقامات سب بہت آسان ہم کو کر دیا گیا ہے. پہلے کے دور میں اس طرح نہیں ہوتا تھا، زیر زبر بھی نہیں ہوتے تھے، یہ بھی بعد میں لگے. تو الحمدللہ اتنا آسان و خوبصورت چھپائی میں پھر بھی صحیح نہیں پڑھتے. اسی طرح بارہا الحمدللہ، سبحان اللہ کہنے کی نوبت آتی ہے، ماشاء اللہ کہنے کی نوبت آتی ہے، السلام علیکم کہنے کا موقع ملتا ہے. لیکن واقعی اس کا بھی درست نہیں ہوتا، کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح نہیں پڑھتے، اس طرح کر دیتے ہیں. تو یہ جو سائل نے کہا تو یہ بالکل درست کہا انہوں نے کہ ایسا ہو رہا ہے.
जो भी कर रहे हैं उनको उसकी इस्लाह करनी चाहिए। और अगर अस्सलाम अलैकुम कहा, मीम को साकिन पढ़ा, तो इसका जवाब वाजिब नहीं होगा। तो अस्सलामु अलैकुम मीम पर पेश पढ़ना होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लाहौर से माजिद मुगल बोल रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत साहब से बात करनी थी मैंने। सर मेरा सवाल ये है, मैं पहले भी एक मरतबा मैंने फोन किया था, जिनसे मैं नेकी करता हूँ मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। इस सिलसिले में मैंने बात करनी थी। मैंने ये तो लोगों ने पैसे लिए हैं, आप पैसे नहीं देते हैं, नेकी की है मैंने, वो लड़ते हैं मेरे साथ, बस आंखें दिखाते हैं। तो मैं ये पूछना था इसका क्या हल है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? अल्लाह करीम आपकी मुश्किल हल फरमाए और जो भी आपके हक दबे हुए हैं अल्लाह करे वो भर जाएं और निकल आए, आपको मिल जाए। और जो लड़ते हैं अल्लाह करे वो आपसे ना लड़े। ये तो मैंने अर्ज किया जो आपका सवाल का जवाब। अब इसमें जनरल बात कर रहा हूँ कि बाजू का जो लोग लड़ते हैं ना, तो इसमें जिससे लड़ते हैं उसका भी कभी कसूर होता है। कि ये कि बचपन से हमने सुन रखा है ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। पैसे दबा लेते हैं, तंग। मैंने भी कारोबार किए हैं, सप्लाई ये वो, तो मेरे भी पैसे लोग खा गए, मैंने सबको माफ कर दिया। बेकार है यार, बेचारे अब तो पता नहीं कहीं तो मर फिट गए होंगे, बल्कि तकरीबन मर फिट गए होंगे। तो अब क्या यार रख कर करना है कि हम क़यामत में नेकियां लेंगे, क़यामत में अल्लाह की रहमत पर ना हम नजर रखें कि हम नेकियों से ही बख्शे जाएंगे। अल्लाह की रहमत होगी तो ही बख्शे जाएंगे ना। हमारी नेकियां बस कैसी नेकियां होती हैं, हमारी नमाजें कैसी होती हैं, हर एक समझ सकता है अगर गौर करे तो। कितना आता है अपने को, खुलूस कितना है, तवज्जो कितनी रहती है, खुशू और खुजू कहाँ से लाएंगे, है ना? तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। यानी कि ध्यान दिल लगना नमाजों में कहाँ है। नमाजों में दिल लगता तो मस्जिद के अंदर आकर हम अज़ानें सुनते। हम तो वो जब भी आते हैं मस्जिद में रहते हुए भी जमातें निकल जाती हैं, रकातें निकल जाती हैं। पहली सफ की कितनी सोच है हमारी, नेकियां ही कमानी हो तो बहुत मौके हैं जो इतनी दूर दूर से माशाअल्लाह तशरीफ लाएं, तो कितना ये मतलब कौन कितनी नेकियां यहाँ आकर भी वो इकट्ठी कर रहा है। वो हर एक अपना अपना यानी कि अमल का जायजा ले सकता है, एहतिसाब कर सकता है, लेकिन ये क्या दुनिया देखी वाली है। तो बहरहाल तो इसलिए वो अपने तौर पर गौर करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा अंदाज गुफ्तगू अगले को मतलब इन्हें चोट करता है, यानी उसको मतलब इन्हें कि तकलीफ पहुंचाता है जिससे वो फिर बिफरता है। तो ये इस तरह भी होता है। अगर खुद कुफले मदीना वाला हो ना, कम गो हो, मुस्कुराने वाला हो, लड़ने वाला ना हो, चिड़चिड़ापन ना हो, किसी को बावले कुत्ते ने थोड़ी काटा जो आपसे लड़ेगा। ये इसको ट्राई कर लें। कभी कोई आते ना, मेरा बेटा मानता नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता, ये नहीं पढ़ता, वो करता है, बदतमीजी करता है, तो मैं क्या आपने सख्तियां करके देख ली ना, अब जरा नरमी करके देखें कदमों में आता है कि नहीं आता। हाँ बोल के तो अब उसको बदतमीज जब एक रख के दूंगा, इस तरह अगर आप बच्चे को समझाएंगे, इसने कहा समझना है यार। समझाने का तरीका ये आजकल है, जारिहाना अंदाज, सबके सामने बोलेंगे किसी को, इसको समझाओ बदतमीज को, माँ का एहतराम नहीं करता, बाप का अदब नहीं करता, जब देखो सामने जवाब देता है। अब आप बताइए कि यार वो कैसे सही होगा इस तरह करेंगे तो। कि मेरे बाप ने ये इतनों के सामने मेरे को डिग्रेड कर दिया, या मस्जिद के इमाम साहब के पास ले गया कि मैं इसलिए लाया हूँ कि इसको समझाएं आप। ये मेरे साथ हुआ है ना, मेरे पास कई बार ऐसा हुआ है कि लाए लोग, इसको समझाओ, बहुत बदतमीजी करता है। तो फिर कभी मैं कान में बोल देता हूँ कि यार अब मैं कैसे समझाऊँ इसको, ये कैसे समझेगा। अब हो सकता है कि ज्यादा तंग करे कि तुमने यार मतलब हमारे वो अत्तारी होते हैं, बच्चे भी अत्तारी होते हैं, क्या पीर साहब के सामने तुमने मेरे को मतलब नजर से गिरवा दिया, ये फिर तो और सताएगा।
तो इसलिए मतलब आप मुझे चिट्ठी लिख देते हैं, कोई इस तरीके से बताते कि इसको ना पता चले, तो फिर आदमी मौके की मुनासबत से, अब लाइन लगी हुई है, ये लाते थे तो समझाओ, पर लाइन लगी हुई है, मैं कैसे समझाऊंगा इसको सबके सामने, ये कैसे समझेगा। एक बुजुर्ग का बड़ा प्यारा वाकया है, वो तो खैर इससे मुनासबत पूरी तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर है कि कोई बुढ़िया अपने बच्चे को या दोते पोते को लाई किसी बुजुर्ग के पास, इसको समझाइए ये गुड़ बहुत खाता है, तो उन्होंने फरमाया कि कल आना, तो कल आई, तो उसको भी प्यार से फरमाया कि बेटा गुड़ नहीं खाया करो। तो फिर वो बुढ़िया ने बोला कि आप कल ही ये बात बोल देते, सिर्फ अगर यही बोलना था कि गुड़ मत खाया करो, तो बुजुर्ग ने फरमाया कि कल असल मैंने खुद गुड़ खाया था। तो ये कि अब बाप बदतमीजों का सरदार हो और बेटे के तमीजदार होने के ख्वाब देखे, तो ये कैसे होगा। बाप बार बार वो तमीज का मतलब खून करता हो, कत्ल करता हो, उसको झाड़ता रहता हो, ये मतलब ये बदतमीजी करता है, ये और क्या करेगा। तो इसलिए बाप का अखलाक अच्छा होगा, बाप तमीजदार होगा, माँ हुस्न अखलाक की पैकर होगी, बेटा बदतमीज नहीं बनेगा, बद अखलाक नहीं बनेगा। घर यानी पहली स्कूल, पहली तरबियत का पहला मदरसा तो माँ की गोद है। ये मदरसा ही आजकल आजमाइश वाला है, तो यूं भी शायद बच्चों के अंदर बिगाड़ बहुत पैदा हो रहा है। माओ को पता नहीं कि बच्चे की तरबियत कैसे करनी है, बाप को नहीं पता कि इसको कैसे सेट करना है, तो वो अपने हिसाब से लेके चल रहे होते हैं। और जो ड्राइविंग नहीं जानता, अब उसको गाड़ी हाथ में आ जाए, उसके बेहतरीन गाड़ी हाथ में आ जाए, करेगा क्या। तो थोड़ा बहुत मतलब अगर वो स्टार्ट करना आता होगा तो कहीं ठोक देगा, और क्या। तो ड्राइविंग सीखेगा तो आएगी ना। इसी तरह तरबियत का तरीका आता होगा तो तरबियत कर पाएंगे ना, वरना तो वही होगा जो माशरे में बदकिस्मती से हो रहा है। तरबियत औलाद के ताल्लुक से तरबियत औलाद एक रिसाला है मकतूत मदीना का, छोटी सी किताब है, 100-150 सफ़े की, वो मतलब ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह करेगा तो इसमें आपको तरबियत के बेहतरीन मदनी फूल मिलेंगे इंशाअल्लाह करीम। और इसी तरह वो दूसरे लोगों के साथ कि वो तंग करते हैं, तंज करते हैं, लड़ाई करते हैं, जिसका भी मैंने आपको हल बता दिया कि आप सब्र करने वाले बनेंगे, चुप रहेंगे, इनको जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो वन साइड कोई खामा का पागल नहीं होगा, आपको रख के दे देगा, कोई वजह होगी तभी वो रख के देगा चांटा। और आप फिर बोलोगे नहीं यार तुम खुश होते हो तो एक और मार लो, अब वो दूसरा नहीं मारेगा। एक मुहावरा है, मैं इसका तजर्बा मत करना, ठोक भी दे क्या पता, ज्यादा ही घूमी भी हो तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा प्यारे बाबा जान की बारगाह में ये क्वेश्चन है, हम लोग बहुत ही ज्यादा दुआएं मांगते हैं लेकिन वो चीज हमें एज इट इज मिलती नहीं है, तो फिर बहुत से लोग वसवसों का जो है वो शिकार होते हैं। आप इस हवाले से क्या फरमाते हैं? अल्लाह अल्लाह। फज़ाइल दुआ जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है आसानुल बियाह लिआदाब दुआ, इसका तर्जमा फज़ाइल दुआ मकतबतुल मदीना ने छापा है। बहुत मालूमाती किताब है दुआ के ताल्लुक से। उसमें एक बड़ी प्यारी और काबिल गौर हिकायत लिखी है, वाक़या लिखा है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बनी इसराइल 7 बरस कहत में मुब्तला रहे, यानी बारिशें नहीं हो रही थी और अनाज की एकदम तंगी हो गई, यहाँ तक के मुर्दों और बच्चों को खाने लगे। हमेशा पहाड़ों में निकल जाते और आजिजी और तजर्रो के साथ न गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते और रोते, मगर रहमत इलाही इनके हाल पर असलन तवज्जो ना फरमाती। यहाँ तक कि इनके पैगंबर अलैहिस्सलाम पर वही आई, अगर तुम मेरी तरफ इस कदर चलो कि तुम्हारे घुटने घिस जाएं और तुम्हारे हाथ आसमान को लग जाएं और तुम्हारी जबानें दुआ करते करते गूंगी हो जाएं, जब भी मैं तुम में से किसी दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल ना करूं और किसी रोने वाले पर रहम न फरमाऊं,
जब तक मजलूमों को उनके हुकूक वापस ना कर दें। बस बनी इसराइल ने मजलूमों को उनके हक वापस किए, उसी दिन मी बरसा, उसी दिन बरसात बारिश हो गई। तो जुल्म जो है ना, ये जुल्म इतनी बुरी चीज है कि वो मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने तो लिखा है कि बट्टेर आपने नाम सुना, परिंदे बट्टेरें अपने घोंसलों में मर जाती हैं जुल्म की वजह से, जिन्हें लोगों के जुल्म की वजह से ये मर जाती हैं। इतना मतलब ये जुल्म क़यामत का अंधेरा है। और आज देखो तो हर एक दूसरे पर जुल्म करने पर तुला हुआ है। अल्लाह पाक ने जुल्म करना खाली है किसी को कत्ल कर देना या जख्मी कर देना, हाथ पैर तोड़ डालने, सिर्फ ये जुल्म नहीं है। जुल्म ये भी है कि किसी को धोखा दिया, किसी की ग़ीबत की, और यहाँ तक कि मतलब किसी का कर्जा दबा लिया, इस तरह मतलब किसी को झाड़ दिया, किसी को गाली निकाली, किसी पर गुस्से से मतलब न घूरा या तकलीफ देने वाली नज़र से घूरा, ये सब जुल्म की मुख्तलिफ अक़साम है। जुल्म ये क़यामत का अंधेरा है, तो इसलिए जुल्म से बचना है। और जुल्म एक दूसरे पर हम कर रहे हैं, तो भाई भाई पर कर रहा है, माँ बेटी पर कर रही है, बहू सास पर, सास बहू से, बस मियाँ बीवी पर, ये सब एक दूसरे पर कम और बेश, मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ, जुल्म बहुत हो रहा है। तो जो खराबियाँ, जो मतलब आफतें, मुसीबतें इस वक्त हम अपने यहाँ देख रहे हैं, तो भी जो भी बाशऊर है उसको पता होता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या तकलीफें हैं। महंगाई, ये भी तो तकलीफ है। लोगों का माल महंगा कर देना, एक तो हम महंगाई की वजह से परेशान, दूसरा मजीद महंगा कर देना कि अगर 10% माल महंगा हुआ है एक्चुअली हकीकत में, तो 100% बढ़ा देना, नहीं 110 रुपए की चीज को 200 रुपए देना, है ना। तो यूं मतलब पिस रही है कौम, एक दूसरे को सब पीस रहे हैं। इलाज महंगा, दवा महंगी, जो बोलो महंगा, जहर महंगा। ये खुदकुशी करने के लिए शायद जहर भी नहीं मिलता होगा लोगों को, करनी नहीं चाहिए, हराम है। मैं वैसे ही समझाने के लिए, चोट करने के लिए, हर चीज महंगी, हर चीज में मिलावट, ये जहर खाए बंदा तो मरे भी नहीं, ये भी केस है इस तरह के भी। तो ये प्लस है उसके हक में कि बच गया जिंदा, तौबा की तौफीक मिलने का उसको चांस मिल गया, क्योंकि केस तो हो जाता है, पुलिस के हाथ में आ गया तो गया। तो ये कि कानूनी भी जुर्म है, और कानूनी जुर्म के साथ साथ इस्लामी कानून भी जुर्म है, कुरान में भी मना है अपनी जानों को इस तरह हलाक करना, खुदकुशी हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। लेकिन ये कि जो खुदकुशी करे उसका जनाजा पढ़ा जाएगा और उसके लिए दुआए मगफिरत की जाएगी, इसाले सवाब भी किया जाएगा, ये ज़हन में रखिएगा। बाद लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने कहा मसला क्लियर कर दूं। ताहम ये कि जिसने ये किया ना खुदकुशी, ये बड़ा खतरनाक जुर्म किया है। जिस चीज से इसने अपने आप को मारा, सपोज करें कि उसने अपने आप को पंखे से लटका लिया, अब पंखे से लटका रहेगा। इसने अपने को करंट लगा लिया, करंट खाता रहेगा। अब इसने गोली अपने को चला दी तो गोली खाता रहेगा। चाकू से गला काटा तो भी चाकू से कटता रहेगा। तो ये इस तरह की इसकी सजाएं हैं खुदकुशी करने वाले की। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए। जिन मुसलमानों ने खुदकुशी की, अल्लाह उनकी मगफरत करे और उनकी सज़ा ख़त्म हो जाए अगर है उस पर तो। और जो करना चाहते हैं अल्लाह करे कि वो पलट कर आ जाए। ये मुसीबत, वो मुश्किल, ठीक है, मुसीबत है, परेशानी है, बीमारी है, जो भी है, लेकिन खुदकुशी में खुद ऐसी तकलीफ है कि जिसकी इंतहा नहीं। और फिर ये मरने के बाद जो सजाएं अगर आ गई तो मरे। और खुदा न खासा खुदकुशी को हलाल समझ कर खुदकुशी की तो हमेशा के लिए जहन्नम। तो खुदकुशी बहुत खतरनाक है। तो जो भी सोच रहे हो ऐसा, तो वो इस ख्याल को झटक दें, तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं। खुदकुशी मसले का हल नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। खुदकुशी करने से जान छूटती नहीं है, जान मजीद फंसती है। तो मजीद फंसाने से अपने को बचाएं। जिसमें आप फंसे हुए ना मुश्किल में, जिसमें सवाब मिल रहा होता है मुसलमान को, तंग दस्ती, बेरोजगारी, बीमारी, जो भी है, सवाब मिल रहा है,
सवाब के मीटर को ऑफ करके जहन्नम में क्यों छलांग मार रहे हैं? ऐसा ना करें, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। तो अब ये कि हम रात दिन अल्लाह पाक की नाफरमानी करें, नमाज हम ना पढ़ें, पढ़ें तो बेजमात पढ़ें, बाजमात भी पढ़ें तो सही ना पढ़ें, सीखें ही नहीं, माँ बाप का अदब ना करें, इनकी नाफरमानियां करें, माज अल्लाह दाढ़ी भी मुंडाएं, एक मुट्ठी से भी कटाएं, यानी कदम बाद में उठे पहले नाफरमानी हो। हम अल्लाह रसूल की कोई बात ना माने, उस पर अमल ना करें, और अब हम कहेंगे अल्लाह हमारी बात ही नहीं सुनता, हमारी बात ही नहीं मानता। अल्लाह के नेक बंदो, आप सोचो तो सही कि कोई आपका बॉस हो या अफसर हो, आप कोई ये बोले कि काम इतनी देर में पूरा होना चाहिए, आप ना करें। ये आपको बोले कि चाय ले आओ, जल्दी लाना, गर्म गर्म होनी चाहिए, तो आप ठंडी करके आहिस्ता आहिस्ता आए और लाएं। आप बोले ये झाड़ू निकालो, तो आप झाड़ू में सुस्ती करें, इधर कचरा छोड़ दें, उधर कचरा, से बहुत सब नोट कर रहा है कि ये इताअत नहीं कर रहा, मेरी बात नहीं मान रहा, तनख्वाह बराबर ले रहा है। अब आपको कोई जरूरत पड़ेगी, आपने कहा बॉस ये काम मेरा, तो आप बताइए कि बॉस ये काम आपका कैसे करेगा? आपने तो इसको मतलब बिल्कुल तिगनी का नाच नचाया हुआ है, ये कैसे आपका काम करेगा? बल्कि जो अपने बॉस की या अपने अफसर की बातें नहीं मानता था, वो अर्ज करते हुए अपना मुद्दा का वो भी शर्माएगा कि यार मैंने इसकी कौन सी बात मानी है जो अब ये मेरी बात मानने लगा। तो मान भी लेंगे और नहीं मानेगा, वो काम नहीं करेगा, आप उससे बज्जन नहीं होंगे, यार मैं कौन सी इसके काम करता हूँ, सही तनख्वाह पूरी लेता हूँ। तो हम अल्लाह पाक की रोजी पूरी पूरी खाएं, जमा करें, बैंक बैलेंस बनाएं, ब्रांचें इधर उधर खोलें। अल्लाह ने बोला सूद नहीं, सूद लिया, रिश्वत नहीं, रिश्वत ली, कर रहे हैं ना सब, झूठ नहीं, झूठ बोला, धोखा नहीं, धोखा भी दिया, और ये माल जमा किया। अब या अल्लाह बच्चा बीमार है, या अल्लाह मेरी तबीयत खराब है, ठीक कर दे, ठीक कर दे, ठीक कर दे। अल्लाह सुनता ही नहीं है, बस ठीक होता ही नहीं, मेरा बच्चा सेहतयाब होता ही नहीं। तो ये किस मुंह से हम गिला शिकवा कर रहे हैं? हम कौन सी मानते? तो एक तो इसका इस जवाब पर गौर फरमा लीजिएगा, ठीक है ना। और यहां तक कि शेर भी है किसी का, क्या खता मुझसे ऐसी हुई है जिसके मुझको सजा मिल रही है, ये मिसरा है किसी का, कोई अननोन शायर का। अब ये कि अल्लाह के बंदे क्या खता नहीं हुई है तेरी, ये कोई बात है कि मेरी क्या खता हुई है? चोरी और सीना चोरी, ये कैसे बोल सकता है यार एक बंदा? औलिया किराम अपने आप को गुनाहगार कहकर चले गए, है ना, कि सबने आजिजियां की, और ये शायर कह रहा है कि क्या खता मुझसे ऐसी हुई है जिसके मुझको सजा मिल रही है। ये तो अल्लाह का करम है कि हम पर आसमान नहीं फट जाता, जमीन नहीं फटती कि हम इस पर धंस जाए। खुदा की कसम, इस वक्त इतने गुनाह उम्मत में फैले हुए हैं, ये अल्लाह का करम है कि हम लोग बच्चे हुए। तो बहरहाल एक अपना रोजी रोजगार सब हलाल हो और अल्लाह पाक की बारगाह में हम मर्ज करें, और फिर भी अगर ना मिले कुछ मांगा हुआ, इसमें भी अल्लाह पाक की मसलियत पर नजर रखें। तो हम जो चीज मांग रहे हैं अल्लाह पाक हमें नहीं अता फरमा रहा, तो ये उसका करम है कि आइन मुमकिन है कि हमारे हक में बेहतर ना हो, इसलिए नहीं दे रही, कुरानी हुक्म है। तो इसलिए अल्लाह की रजा पर बंदा राजी रहे। एक बुजुर्ग का बड़ा प्यारा वाकया है, एक बच्चा था नाबीना, दूसरे आंख वाले थे, और ये बेचारा उनके साथ खेल रहा था, लेकिन जाहिर वो नाबीना तो अपने हिसाब से खेल रहा था। तो उन्होंने जब देखा तो इनको बड़ा रहम आया इन पर, और इनके लिए दुआ की कि अल्लाह इसको आंख दे दे, बेचारा ये भी खेले। अब तो अल्लाह पाक ने उसको आंखें दे दी बच्चे को, अब आंखों वाला हो गया, आओ हट जाओ। अब इसने तो पानी कर उठा उठा के दूसरे बच्चों को डबोना शुरू किया, मारा मारी कर दी समझो। तो अब बुजुर्ग, या अल्लाह तू जो करता है सही करता है, ये नाबी नहीं ठीक था कि ये बीना हुआ और दूसरों के लिए मसले खड़े कर दिए। तो यूं भी बाज औक़ात नाबी ने, बल्कि बाज नाबी ने देखे मैंने, अरे इनकी अगर आंखें होती तो पता नहीं क्या कर डालते, ऐसे देखे, उससे सियाने, ऐसे चालाक, बल्कि चीटिंग करते हुए भी पकड़े जाए हो नाबी ने, बहुत पावरफुल। ये आंख वाले हो तो तख्ते उलट दें लोगों के।
तो ऐसों का नाबीना रहना ही मतलब उम्मत के लिए मुफीद होता है। तो अल्लाह पाक जो करता है वो बेहतर करता है, खुद इसके लिए मुफीद होता है कि अगर आंखों वाला होगा तो ज्यादा जुल्म करेगा और लोगों को सताकर अपने नामा अमाल को बर्बाद करेगा। तो इसलिए अल्लाह की रजा पर अगर कोई चीज़ हमें मिल गई, हो सकता है वो चीज़ मिलना हमारे हक में बेहतर ना हो, हम मालदार हो जाएं। हम ये ख्वाहिश तो किसकी नहीं होती, लेकिन मालदार होने में अगर ये है कि अल्लाह ना करे नमाजें छूट गई, मसरूफियत तो होती है ना, माल ऐसे थोड़ी छत पे से टपकता है, भागदौड़ करनी पड़ती है, फिर टेंशन अलग। तो यूं कि हम दूर हो जाएं दीन से या तकब्बुर आ जाए, गरीबों को हकारत से देखना शुरू कर दें, तो इसलिए मतलब बाज़ों के लिए गुर्बत बेहतर होती है, बाज़ों के लिए मालदारी बेहतर होती है, और ये अल्लाह की मसलहत है। तो इसलिए मतलब या फिर ये होता है कि अल्लाह पाक इसके लिए एक तो ये कि जो मांगा ये दे दिया, दूसरा ये होता है कि इसकी दुआ करने से आने वाली मुसीबतें इसकी टल जाती हैं। कि अभी यहाँ आया, दुआ में शरीक हुआ, मिसाल के तौर पे दुआ में शरीक हुआ मदनी मुज़ाकरे में, या दुआ के बाद जाऊंगा मैं, और किस्मत मुअल्लक, एक तकदीर मुअल्लक होती है कि ये इतने बजे रोड पे निकलेगा तो इसका हादसा होना है। तो अब यह कि ये दुआ में रुक गया, दुआ मांगी, हादसा होने का टाइम आ गया, लेकिन तकदीर मुअल्लक, ये एक किस्म तकदीर की, और ये अल्लाह को मालूम है कि कौन क्या करेगा, समझे। तो अब ये कि ये दुआ में रुक गया, फिर मुस्कुरा के दो चार से मुलाकात भी कर ली इसने, इनफरादी कोशिश भी कर ली, जल्दी नहीं भागा मिसाल के तौर पे। अब उसका टाइम जो था ना हादसे का वो गुजर गया, और उस दुआ की बरकत से बला टलने वाली कि वो मत हादसे से बच गया। अगर वो दुआ छोड़कर जाना था, इसने हाथ पैर तोड़वाना था। तो आप बोलोगे यार मैंने तो माँ की बीमारी के लिए दुआ की यार, इतने मजमे में दुआ की, बोलते कि मुसलमानों के मजमे में दुआ कबूल होती है वगैरह, नेकों के कुर्ब में दुआ कबूल होती है, कुछ नहीं हुआ। अरे अल्लाह के नेक बंदे, तेरी टांग बच गई, कुछ नहीं हुआ, तुझे पता नहीं है, तेरा बाजू टूटने वाला था, तू बच गया, दुआई की तो बरकत थी। तो ऐसी बहुत सारी बलाएं हमारी दुआओं की वजह से टल जाती हैं, जिसका हमें पता नहीं चलता, हम समझते हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। या ये कि बच्चा बीमार है, तो वहीं का 102 बुखार चढ़ा हुआ था, मैं दुआ मांगी, नीचे नहीं उतरा 102 से, अरे अल्लाह का शुक्र कर 105 होने वाला था, 102 पर तेरी दुआ ने इसको रोक रखा है। तो हम यूं मत ज़हन बनाएंगे ना, तो इंशाअल्लाह करीम मीठा मदीना हो जाएगा सब। अल्लाह हमको मतलब ऐसी सोचें अता फरमाए। तो ये ज़ाहिर है कि ये मदनी मुज़ाकरा, इस तरह अपने हफ्तावार इज्तिमात और ये आशिकान रसूल के माहौल में ये बातें सीखने को मिलेंगी। ये हर बात किताबों में नहीं लिखी होती, और हर किताब हम पढ़ने वाले कब हैं, हमने कौन सी पढ़नी है किताबें। तो इसलिए मतलब ये कि आप दावत इस्लामी का दीनी माहौल छोड़िएगा, बात आशिकान रसूल की सोबत में रहिएगा। माशाअल्लाह जब 3 दिन का कड़कड़ाती सर्दी में आप टाइम दे सकते हैं और ट्रेन में आ सकते हैं, जा सकते हैं, इतना माशाअल्लाह आप में मतलब हौसला और जज्बा है। तो अब ये हौसला भी रखना कि अब हफ्तावार इज्तिमा आपके अपने शहरों में आपका नहीं छूटना चाहिए, और जहाँ भी हो हर महीने 3 दिन मदनी काफिले में सफ़र करना। कड़कड़ाती ठंडी में इतना सफ़र करके आप आ सकते हैं, तो अपने करीब में अपने शहर के 3 दिन के लिए नो प्रॉब्लम, इंशाअल्लाह हिम्मत करें। आपकी बैटरी हर महीने चार्ज होती रहेगी, और हफ्तावार इज्तिमा में भी हर हफ्ते चार्ज होती रहेगी। नमाजों में दिल लगेगा, दीगर सुन्नतें सीखने को मिलेंगी, अमल का जज्बा मिलेगा, और एक अच्छे मुसलमान बनकर इंशाअल्लाह मुआशरे में उभरेंगे। ये सब करना है। 12 दीनी का मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल के जरिए सुनते रहें, जहाँ जमा होकर सुनते हैं अपने तरीके कार के मुताबिक इस्लामी भाई, तो वहाँ मिलकर सब देखें। अगर नहीं आपके यहाँ होता तो जिम्मेदारों से मिलजुल कर तरकीब बनाकर मेरा घर हाजिर है, मैं स्क्रीन भी लगा दूंगा, आप आने वाले अगर बनते हो तो, है ना, फैसिलिटी दें। बेशक इनको जब ख़त्म हो जाए मैं चाय भी पिलाऊंगा। अल्लाह ने बहुत दिया यार, मतलब इधर उधर उड़ाते हैं। तो अगर ये दीन के लिए जमा करके, या कोई मेरी भाई नानी की बरसी है, मैं इस हफ्ते को अपनी नानी के इसाले सवाब के लिए स्क्रीन लगाऊंगा घर में, मगर इस सब जिम्मेदारों से मिलकर करना है, और इंशाअल्लाह धूमधाम से हम वो मदनी मुज़ाकरा करेंगे। कल एक इस्लामी भाई मिले थे, बता रहे थे कि मैं मदनी मुज़ाकरा जमा करूंगा अपने शहर में, 26,000
इस्लामी भाई जमा करूँगा। वो बड़े बुलंद हौसले के लगते थे। इनके साथ वो हाजी अजहर भी थे, रुकन शुरा, वो भी तारीफ कर रहे थे इसकी कि मतलब ऐसे दीवाने हो। तो है ना, मतलब ये भी हौसला। आप 26,000 ठीक है, मतलब उन्होंने कहा आप सब नहीं करें ऐसा, 26 ही जमा करके बैठ जाए, माइनस कर दें 25 ही बैठ जाए, 12 लेके बैठ जाए, तो मिलकर देखेंगे इसका अलग फायदा है कि उसमें फालतू बातें या वो कुछ डिस्टर्बेंस कम होगा। और घर में बैठेंगे तो बच्चा आकर झप्पी डाल देगा, तो बच्चों की अम्मी बुलाएगी, सुनते हो अभी इसने क्या कारनामे किया है आपके बेटे ने। अब आप मदनी मुज़ाकरा सुनेंगे या उनकी सुनेंगे, फिर आप मारेंगे चीख, है चुप रहे, अभी ऐसा अच्छा बोल रहे थे तो निकल गया मेरा, अब ठनी दोनों की। तो ये नहीं करने का। लेकिन घर में ये चांस होता है, करना नहीं चाहिए लेकिन होता होगा ये। तो आप बैठे मतलब मिलजुल के इस्लामी भाइयों के साथ, तो कुछ ना कुछ हया, कुछ ना कुछ मतलब मुरुवत की वजह से भी आप इत्मीनान से शायद देख पाए। घरों में जो इज्तिमाई मदनी मुज़ाकरा देखा जाता है, इसमें भी जैसे अभी आपने अकेले बैठने वाली जो बात बताया इनकी ने, उसमें भी ये जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो मैं एक मशवरे अर्ज़ करूँगा। मुझे बाज़ औक़ात इस तरह का बैरून मुल्क इत्तेफाक हुआ है मदनी मुज़ाकरों के ताल्लुक से। तो जैसे जब मदनी मुज़ाकरा चल रहा हो ना, तो मेरी जो मेज़बान स्पेशली जिन्होंने अपने घर में सारा इंतज़ाम अमूमन किया होता है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से आखिर तक ये पानी आ रहा है तो आप फिर चाय ला रहे हैं, तो फिर कुछ और ला रहे हैं, फिर कुछ और ला रहे हैं, तो ये जब आप लाते हैं ना, तो ये भी समझे कि वो पूरा वो मदनी मुज़ाकरे का माहौल जो बनता नहीं है। बाज़ औक़ात तो जैसे मुझे ऐसा हुआ है कि मौजू ऐसा चल रहा होता है कि मैं चाहूँ कि यार ये कम से कम ये जिसका घर है ना, ये सारे घर वाले बैठ कर सुने कि कहा क्या जा रहा है, और इतने में वही उठकर वो जो है ना वो सारे फिर वो हमारे कोई एक दो इस्लामी भाई भी साथ मिल जाते हैं, अरे मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, तो यूँ करके वो सारा वो मदनी मुज़ाकरे के दौरान एक निज़ाम भी उनका चल रहा होता है। या फिर अगर कोई आ रहा होता है, जैसे पीछे से कोई आया, तो बाज़ औक़ात होती है कोई ऐसे इस्लामी भाई कि भी उसके लिए भी सारे खड़े हो जाएंगे, फिर वो बैठो बैठो करेंगे, फिर वो यूं बिठाओ तो वो भी बोलेगा नहीं नहीं आप बैठो, तो 1-1.5-2 मिनट की बातें निकल जाती है ना, यकीन माने बस वो कहते हैं खून पानी पानी भाप बनकर उड़ जावे। तो मेरी इस पे तमाम से ये मेरी दरख्वास्त है, जो भी माशाल्लाह जो देख सुन रहे हैं, कि मदनी मुज़ाकरा जब शुरू हो ना, तो उसके बाद अब जो भी आ रहा है इंशाल्लाह वो बैठ जाएंगे, और वो मतलब उनको भी चाहिए कि वो आकर पीछे बैठ जाएं, इतना वो ना करें, और मेज़बान को भी चाहिए, दीगर को भी चाहिए कि मदनी मुज़ाकरा इतनी देर का है, पानी की बोतलें वगैरह जो भी हम वहाँ रख दें, पानी पीने वगैरह का वो रख दें। जब मदनी मुज़ाकरा ख़त्म हो जाए, जो भी आपका टाइम पीरियड हो, उसके बाद फिर आपने जो एहतमाम वगैरह किया वो करें। लेकिन दौरान मदनी मुज़ाकरा मेहरबानी करके, ये जो कुछ मेरी आंखों ने देखा है वो भी मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, फिर बिठाना पड़ता है, कुछ कुछ करना पड़ता है, फिर सब तसल्ली हो जाती है, फिर बैठ जाते हैं। लेकिन शायद हर जगह ऐसा हो या हर कोई कर ले, ये ज़रूरी नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर इसके जो फ़वाइद आप देखेंगे ना, कि यकसुई के साथ मदनी मुज़ाकरा देखें, तो इंशाल्लाह इसके अपने फ़वाइद होंगे। भाइयों को बिठाएं, बच्चों को बिठाएं, फैमिली मेम्बर जो होते हैं बिठाएं, तो इंशाल्लाह इसके फ़वाइद आप देखेंगे, अल्लाह ने चाहता हूँ। माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी प्यारी आपने बातें की। इसका तो मदनी गुलदस्ता बनना चाहिए। मदनी मुज़ाकरा, इज्तिमाई मदनी मुज़ाकरा देखने के मदनी फूल। अब इसमें अगर इस्लामी बहनों को भी प्लस कर लेना, क्योंकि जिनके घरों में ये करते हैं ना, वहाँ भी कुछ ना कुछ इनकी फैमिली सी कुछ ना कुछ इस्लामी बहनें जमा हो जाती हैं। उनको किचन में रखा है, उनको कहीं और रखा हुआ है, तो किसी और कमरे में मदनी चैनल पर उनको देखने का भी मतलब, इनको भी मतलब कि आप इनके लिए भी भलाई का करें कि वो भी पूरा मदनी मुज़ाकरा देखें, जो करना है मदनी मुज़ाकरे के बाद। और बच्चों के शोर शराबे से भी, यानी जो भी एक बचाने की एक सूरत होती है कि यकसुई, जिसको कि एक कंसंट्रेशन के साथ प्रॉपरली अगर आप मदनी मुज़ाकरा देखेंगे, इंशाल्लाह आप घर के इस्लामी बहनों को, इस्लामी भाइयों को, आपके मेहमानों को, सबको अल्लाह ने चाहा तो जो फ़ायदा होगा तो फिर वो देखने जैसा होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, ये भी है कि जैसे असल ये इस्लामी भाइयों में भी होता होगा, इस्लामी बहनों में भी होता होगा कि जब यानी कोई इस तरह की बात आती है ना, मसलन ये कि जिससे हम बहू को मदनी फूल दे रहे, जी जी, हाँ, तो सास अगर बैठी है, सुन तेरे को समझा रहा है, सुन। अब वो जो इसको सुनाना था ना, वो गुजर गया। हालांकि वो सुन रही थी,
मगर ये बीच में आकर इसने अपना ही नुकसान गड़बड़ा डाला। अब जब सास को तोहफे दिए जा रहे होते हैं तो बहू तो बेचारी बोलने से रही, लेकिन मुस्कुरा कर देखेगी भी ना अगर सास की तरफ, तो सास की तवज्जो हट जाएगी कि ये मुझे तंज कर रही है। तो यूं होता होगा। किसी ने मुझे चुटकुला बताया, उन दिनों जब हमारी वो स्क्रीन पर ये इज्तिमा दिखाया जाता था सब, अब यानी और इधर अंदर में फैजान मदीना में देखते थे। अभी दूसरी जगह यही है जो इज्तिमाई तौर पर मदनी मुज़ाकरा देखते हैं, तो गालिबन उनके यहाँ सिस्टम यही है, क्योंकि कोई यूं कर रहा होता है, कोई यूं कर रहा होता है, आते हैं ना तो कंफर्म करते हैं कि मैं यूं के नहीं। तो ये कि कोई इस्लामी बहनें मिल के बैठ रही होंगी, सास भी थी, बहू भी थी, और इत्तेफाक से मजमे में सास को अपना बेटा नजर आ गया, तो बहू का शोहर। तो जैसे वो नजर आया ना, तो वो सास ने जोरदार 2 हाथ उसको मारे कि देख तो सही, इतने मुंह चला गया, स्क्रीन से आउट हो गया। तो ये भी चुटकुले होते होंगे। तो ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना और सुनना है। यकसुई से अगर देखेंगे सुनेंगे, यकसुई के माना भी तो शायद नहीं समझते होंगे, सुई तो है हमारे घर में, तो सुई लेकर देखना, इसमें क्या हिकमत है। तो यानी तवज्जो के साथ ध्यान से देखना है, इधर उधर भी ना देखा जाए और बातचीत भी ना की जाए, और बिल्कुल यानी कि इस तरह देखना है। इसको यकसुई इसको बोलते हैं। कोई आए तो मेहरबानी करके बस वो आकर बैठ जाएंगे, आपने गुंजाइश रखी हुई है। और मैं ख़ास ये बाबा ये सोएम वगैरह के भी जो इज्तिमा, तो इस तरह के अगर सोएम में भी तरक्की बनती हैं, तो जिनके यहाँ सोएम होता है ना, जो ख़ास वहाँ जिन्होंने अपने यहाँ रखा है और इन्होंने इसाले सवाब के लिए रखा हुआ है, माशाल्लाह इस्लाम भाई जमा हो गए, तो एक तादाद होती है जो इनसे मिलना चाहती है, जिनके पास ये आए हैं, और उनको जैसे कि मुंह देना होता है कि हम आए हैं। तो मैं चंद एक को जानता हूँ कि उनकी आदत ये होती थी कि ऐसे मौके पर जब बयान वगैरह हो ना, वो सबसे आगे, जैसे जहाँ मुबल्लिग बयान कर रहा है या मदनी मुज़ाकरा हो रहा है ना, तो सबसे आगे पहली सब में टीवी के सामने वो बैठ जाएंगी, जिनके घर पर है प्रोग्राम। अब जब तक इनसे कोई मिलेगा नहीं, वो जाएगा नहीं, तो वो एंड तक आगे बैठना, और जब खत्म हो जाए ना उसके बाद उठना। तो जितने भी ये मेहमान आए हुए होते हैं ना, वो अपने मेजबान से मिले बगैर जाते नहीं है। और अगर यही मेजबान पीछे बैठ जाए ना सबको वेलकम करने के लिए, मारा गया, तो ना वो कुछ सुनेगा नहीं, वो 2-2 मिनट के बाद भी लोग जाना भी शुरू हो जाएंगे। अच्छा जरा काम है यहाँ, अच्छा जरा काम है यहाँ, आना बहुत बहुत वो यूं होता है। लेकिन बस ये मेजबान अगर जो है ना मेन, ये आगे चुपचाप होकर बैठ जाए ना और बोला मैंने देखना, तो जितने पीछे से आएंगे ना, यकीन में आखिर में आपसे मिले बगैर उन्होंने जाना शायद नहीं है। हो सकता है कि ये कोई लेकर चला जाए। और माजी की याद दिला दी। मैं पहले अल्लाह का दौरा मत नेकी की दावत में जाता था क्या, मैं सिखाता भी था और इस तरह मैंने किया भी होगा, कि बल्कि शायद किया है मैंने, कि वो जिसको जो राजी हो गया नहाने के लिए, तो उसके चप्पल में पकड़ लेता, अरे नहीं आप अल्लाह की राह में आए हुए हैं, मुझे ही खिदमत कर लेते, चप्पल इसके उठा लेता, आगे रख देता। अब उसको भागने को जी तो जाए, लेकिन अब वो आगे से चप्पल उठा के जाएगा कैसे। ये हिकमत अमली अगर ये सब सीख लेना तो बड़ा फायदा हो इंशाअल्लाह। तो थोड़ी देर का तो बयान होता, लेकिन आदमी को उकताहट होती है कि ना, अब आ गया, नमाज तो पढ़ता था, गया चलो यार मौलाना बुलाने आया तो 2 मिनट पहले चले जाते हैं, नमाज पढ़ के अपने चप्पल लेके, इनसे कौन सा पीछे दौड़ लगानी है। तो यूं मतलब यानी कि तेरी वहशतों से ऐ दिल मुझे क्यों ना आर आए, तो उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझ पे प्यार आए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। मुझे अपनी और सारी दुनिया की लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। ऑनलाइन अकेडमी में पढ़ता हूँ। प्यारे बाबा जान, आप रजब उल रजब बहुत बहुत मुबारक हो।
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آج میں آپ کو دودھ پینے کی دعا سناتے ہوں. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. حسین نبی جنتی جنتی. امیر معاویہ جنتی جنتی. حضرت ابو بکر صدیق بھی جنتی جنتی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی. آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. چاہر دوسرا سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری من موہنی ادائیں. مرحبا. ایک بچی نے بہت اچھا پڑھا اس میں حسبی ربی جل اللہ کے بعد معافی قلبی غیر اللہ. یہ پہلی بار بچوں سے میں نے سنا. معافی قلبی معافی قلبی پڑھتے ہیں بچے. یہ پہلے بھی شاید میں نے اس پہ بتایا تو اس پر ہو سکتا ہے اس کو سکھایا ہو تو اچھا سکھایا ہے. تو یہ قلبی نہیں ہے معافی قلبی غیر اللہ. جیسے ابو بکر نہیں ہے ابو بکر ہے. مبارک ہے مبارک نہیں ہے. قرآنی لفظ ہے مبارک. تو مبارک ہمارے یہاں غلط پڑھا جاتا ہے. ابھی بھی بچے نے مبارک کا یہ تو بیچارہ بچہ ہے اس کو جو رٹاؤ گے رٹے گا تو بڑے ہوں انشاءاللہ صحیح سیکھ لیں گے تو بچوں کو بھی صحیح سکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ان سب کو عالم بعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اور ان سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حج نصیب کرے. بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. حضور مزار ہے یا مزار ہے؟ مزار مشہور تو یہی ہے. کوئی مزار ہے نہیں ہے لغت میں دیکھا ہی ہے نہیں کئی جگہ لغت میں نہیں آتا میسج میں آتا ہے. ہاں ہے تو مزار مزار یا بعد اوقات مزار بولتے ہیں. ہاں مزار پہ چلتے ہیں مزار پہ جانا ہے لکھتے بھی مزار. حضور بولتے ہیں. حضور تو بڑے بڑے مقررین بول رہے ہوتے ہیں. اس سے لغتاً تو حضور لکھا ہوتا ہے ہاں پر پیش ہوتا ہے حضور. یہ پنجاب والے حضور بولتے ہیں زیادہ تر. یہ اسٹیل کا جو ڈبی بناتے ہیں تعویذات کے لیے تو کیا یہ ڈبی بنا سکتے ہیں اور بچوں کو پہنانے کے حوالے سے اس میں کیا حکم ہوگا؟ چاندی کی جو ڈبیا ہوتی ہے چاندی کی کہلاتی ہے جی. یہ نہیں پہنا سکتے. یہ اس میں لکھا ہوا بھی اپنے گھریلو علاج میں بھی اس کی کچھ دی ہوئی ہے ڈیل. تو یہ دھات کی ڈبیا جو ہے تعویذ کی یہ نہیں پہنا سکتے. بچوں کو بھی نہیں اور مرد بھی نہ پہنے. عورت کے لیے گنجائش سونے چاندی کی تو ہے نا اور میٹل دیگر زیورات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جاوید اتاری بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ جمعۃ المبارک کی بابرکت نماز اب صرف 2 رکعتیں ہی رہتی جا رہی ہیں، لوگ 2 رکعت پڑھنے کے بعد چلے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ ایسے الفاظ عطا فرما دیں، کچھ روایتیں بتا دیں، کچھ دعائیں عطا فرما دیں تاکہ اس کے پینافلیکس وغیرہ لگا کر بھی لوگوں میں اس کی اویئرنیس پیدا کی جا سکے۔ لوگ گھر پہ چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے۔ ہو سکتا ہے جا کے پڑھ لیتے ہوں، کوئی دکان میں جلدی جانا ہوتا ہے کسی کو، کوئی مطلب ڈیوٹی کے دوسرا جائے گا فلاں مسجد میں اتنے بجے جمعہ ہوتا ہے، یوں بھی ہوتا ہے نا، تو شاید وہ دکان پہ پڑھ لیتے ہوں گے سنتیں۔ ہمارے یہاں سنتیں پڑھنے کا ذہن ہے، باہر دنیا میں ہے مسائل، ہمارے یہاں ہے سنتیں ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سنتیں عام طور جنرل بات پر پڑھتے ہوں گے۔ 2 رکعت جمعہ پڑھ گئے، کوئی ایسا مجبور ہے اس میں؟ اب اتنا سارے لوگ ہیں کہ 2 رکعت فرض جمعہ پڑھ کے جانا پڑتا ہے دکان وغیرہ پر، ان میں اگر کوئی اور بعد میں جا کر وہ سنتیں دکان پر یا گھر پر پڑھ لیتے ہوں، ایسے اگر کوئی ہیں تو ہاتھ اٹھائیں۔ ہاں 2 ہاتھ، 3 چند ہاتھ نظر آئے، ادھر بھی ادھر بھی، لیکن ہم مطلب حسن ظن رکھیں، ادھر بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ ان کو جانا پڑتا ہے 2 رکعت پڑھ کر۔ تو اب یہ کہ ان کو چاہیے کہ اگر کوئی صحیح مجبوری نہ ہو تو مسجد میں پڑھ لیا کریں تاکہ لوگ بدگمانی نہ کریں کہ یہ سنتیں نہیں پڑھتا۔ تو گھر پر سنتیں اگر کوئی پڑھتا ہے تو حرج تو نہیں، بلکہ بہتر تو یہی مطلب کہ گھر پہ پڑھے، لیکن اب چونکہ حالات تبدیل ہو گئے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ مسجد میں پڑھے۔ لیکن اب بھی اگر گھر پہ پڑھتا ہے تو اس کو کوئی شرعی حکم نہیں لگے گا کہ یہ گناہ گار ہو جائے گا یا سنت اس نے چھوڑ دی کہا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس میں کیا پینا فلیکس دوں، کیا مطلب دعائیں دوں؟ اب لیٹ آنے کی تو ہم ہر جگہ رجحان ہے، زہر میں کون سا جلدی آتے ہیں، ایک تعداد لیٹ آتی ہے۔ سنتیں تو اب ان کو یہ نہیں کہا جائے کہ سنتیں نہیں پڑھی، یہ فرضوں کے بعد پڑھ لیتے ہوں گے، لگے ہوئے تو ہوتے ہیں بعد میں، لیکن سنت قبلیہ پہلے پڑھنا سنت ہے نا، ہم پہلے پڑھیں تو مدینہ قبلیہ میں نے قبل کی سنت ہے، پہلے کی سنت ہے۔ تو جو بھی جمعہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور جن کو جانا پڑتا ہے وہ یہ مسجد میں پڑھ لیا کریں تاکہ بدگمانی کا دور ختم ہو، اور جو نہیں پڑھتے واقعی تو یہ تو برا کرتے ہیں کہ سنت مؤکدہ اگر یہ ترک کرتے تو یہ تو برا کام ہے نا، اور یہ بار بار اگر کوئی کرے تو پھر گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے اس کی بھی عادت بنائے کہ مسجد میں ہی سنتیں سب پڑھ لیا کریں۔ کون سا ہر وقت ہم مسجد میں پڑھے رہتے ہیں، پہلے لوگ مسجدوں میں پڑھے رہتے تھے، اب وہ تو دور رہا نہیں۔ تو اب یہ کہ کم از کم یہ پوری نماز تو پڑھے بندہ، جمعے میں بعد ہفتے میں 1 بار تو آتے ہیں تو وہ بھی پوری نہیں پڑھتے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ پوری پڑھ لی تو 5 نمازوں کی چھٹی، نہیں، 5 نمازیں ڈیلی فرض ہیں، کسی دن بھی معاف نہیں ہے اور کسی کو بھی معاف نہیں ہے، یہ بھی خیال رکھیے گا۔ اگر کوئی کہے نا کہ اب بس میں پہنچ گیا ہوں، میں نماز ہر وقت دل چلتا رہتا اپنا، ہر وقت اپنی نماز ہے، ایسی کوئی باتیں بعض کرتے ہوئے ہو سکتا ہے ملے آپ کو، تو ویسے کہ سائے سے دور بھاگنا، اس کی گلی سے بھی نہیں گزرنا، نہ کچھ کر نہ ڈالے، گمراہ نہ کرے۔ تو اس لیے مطلب ہے کہ نماز تو کسی کو بھی معاف نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور غالباً ان کا معمول جو لگتا ہے اس طرح کے افراد کا کہ جو سنتیں پڑھتے ہیں عام طور پہ یہ وہی ہوتے ہیں کہ جو دوسری نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو وہ سنتیں عمومی طور پر مسجد کے اندر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ایک اندازہ سا ہے۔ یہ جو بھاگنے والی کوالٹی ہوتی ہے نا، وہ عام طور پہ جن کو ہم جمعہ کا نمازی کہتے ہیں کہ صرف جمعہ کے دن آ کے پڑھتے ہیں، عام نمازوں میں آتے نہیں ہیں، وہ بعضوں کا تو اظہار بھی بعضوں کا ہوتا ہے اس طرح کہ ہم جمعے کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، بعض عید کے ہوتے ہیں، کسی عیدی کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو عام طور پہ ایسے افراد کے بارے میں جو ایک مشاہدہ بھی بعضوں کا ہے اور ایک اندازہ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ افراد جو جمعہ کے فرض عام طور پہ پڑھتے ہیں اور عمومی طور پر دیگر نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پر بھاگنے کی کرتے ہیں، ورنہ جو عام نمازی ہوتے ہیں، جو جن کا معمول ہوتا ہے دیگر نمازوں کے پڑھنے کا،
تو وہ عام طور پر سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر. بہت سے وہ نمازی بھی ہوتے ہیں جو جمعہ پڑھنے کے لیے ہی آتے ہیں صرف, تو ان کا یعنی معمول بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ جگہ بھی وہ تلاش کرتے ہیں کہ امام کا سلام بس پورا پھر جائے کسی طرح اور ان کا دوسرا قدم مسجد کے باہر ہو. اس طرح کے بھی بعض ہوتے ہیں. گھڑی دیکھتے ہوئے آتے ہیں, گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ امام صاحب جلدی اب شروع کریں نماز. بعض خطیب جو ہے نا وہ لگے رہتے ہیں, کیا دیر سے جماعت کرتے ہیں, نمازی کم ہو جاتے ہیں ان کے. تو 12 لے کے مکس ہوتے ہوں گے. اور جیسے ابھی امامے والوں نے بھی بعضوں نے ہاتھ اٹھائے, تو یہ مجبوریاں. میں خود یہاں جمعے کے 2 فرض پڑھتا ہوں اور اپنے ادھر کمرے میں جا کے سنتیں وغیرہ پڑھتا ہوں. میں بھی یہ غور کر رہا تھا, پتہ نہیں میرا بھی دیکھ کر سوچتے ہوں کہ یہ یا تو یہ سوچتے ہوں گے یہ سنتیں نہیں پڑھتا, یا سوچتے ہوں گے کہ ادھر سے ہٹ کر چھپ کر سنتیں پڑھنی چاہیے. دونوں خطرات, دونوں غلط. میری مجبوریاں ہوتی ہیں, کیا کروں سمجھ نہیں آتی. اس وقت تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جیسے فرض عشاء ادا کر کے, کیونکہ ہمیں یہاں تیاری فرض عشاء کا تو کسی کو وسوسہ شاید نہ ہے, نہیں جمعے میں آئے گا. جمعے میں دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ بھی امام بھی تو نکل جاتا ہے. میں امام تو نہیں ہوں, لیکن بہرحال میں نمایاں تو ہوں نا, اور شہرت بھی ہے کہ یہ بھی تو نکل جاتا ہے. یہ بھی سنت نہیں پڑھتا, ہم بھی نہیں پڑھتے معاذ اللہ. یہ بھی بیٹھے بیٹھے میرے بتی جلی گیا. دیکھو کل جمعہ ہے, کیا ہوتا ہے آج کل تو یار ایسی پوزیشن ہے, میں کیا بولوں, رات بھر مصروفیت. یہ سمجھو گھر پہ جا کے سوتا ہوگا مدینہ جا کے بعد, گھر پہ بھی سونے کی کوئی تصور فی الحال تو نہیں ہے. میرے اتنے بیانات سوشل میڈیا کے بھی ہوتے ہیں. کل تو 21 پیج تھے, پرسوں 26 تھے, ترسوں 31. آپ ایک رسالہ ہفتہ وار نہیں پڑھتے نا, میں روز کا ایک رسالہ بولتا رسالہ بناتا ہوں, سمجھ لو. اتنی لسٹیں ہوتی ہیں عیادت کرنے والوں کی اور تعزیتوں کی, تو بچوں کے نام رکھنے کی, اور ایک سسٹم ہمارا بنا ہوا ہے المدینہ العلمیہ میں, پوری مجلس اس کی ہے ہماری. تو یہ پھر مدنی چینل پر جاتا ہے, پھر اس پہ کام ہوتا ہے, پھر ہر ایک کو تو اجتماعی طور پر میں یہ بناتا ہوں. یعنی یوں سمجھو کہ روز کے اگر کہوں تو سینکڑوں بنتے ہیں. اب دعوت اس بھی بہت بڑی ہے, نہ عاشورے کی چھٹی ہے میری, نہ بقرعید کی چھٹی ہے, نہ رمضان عید کی چھٹی ہے. مرنے والے کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بیمار ہونے والے کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے, روز بیمار ہوتے ہیں بیچارے. بچہ پیدا ہونے کے لیے بھی کوئی چھٹی نہیں ہے, وہ بھی آئی جاتا ہے. تو میرے پاس وہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اس کے تحت تو فارم بھرے جاتے ہیں اور وہ اس طرح پہنچتے ہیں تقریباً ڈیلی. کبھی چھٹی ہو جاتی ہے, کبھی کبھار, کرتا نہیں حتی الامکان, چاہے بخار ہو چاہے کچھ بھی ہو, طبیعت خراب ہو, تھکا ہوں, کوشش کرتا ہوں. کل تو میرا خیال ہے کہ میں اگر مبالغہ ہو جائے گا شاید, یا نہیں ہوگا ہوتا نہیں, میں پیغامات ریکارڈ کرتے کرتے کوئی 10 بار سو گیا ہوں گا. اتنا لمبا اکیلا اکیلا بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ بیان کرتا ہوں, تو کبھی کوئی مسکرا رہا ہے تو کبھی کوئی اشارہ کر رہا ہے. تو ایک بات ہے, کوئی مت ہاتھ اٹھا رہا ہے تو کوئی جوش آتا ہے تو کوئی بول, تو اس میں نیند نہیں چڑھتی. وہ اکیلا کمرہ بند کر کے کہا تھا مدینے میں, کاش. تو پھر کیا وہ کھڑے کھڑے, پھر وہ ایک میں آئی پیڈ پکڑ کے, ایک میں موبائل فون پکڑ کے کھڑے کھڑے کرتا ہوں چلتے چلتے. اور ڈر بھی لگتا کہ کہیں کھڑے کھڑے آئی پیڈ گرا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ابھی تک تو نہیں گرا خیر. تو ان دنوں آج کل چونکہ مشقت زیادہ ہے, روز تو نہیں ہوتی, تو مشقت زیادہ ہے, تو یوں مطلب یہ کہ وہ تھکانا, وہ ایج بھی آپ کے سامنے 75 سال, تقریباً 74-75 سال ہے. الحمدللہ اس کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے کہ ابھی تک حواس قائم ہے, عقل سلامت ہے الحمدللہ. اللہ کرے مرتے دم تک عقل سلامت رہے اور یہ امت کی خدمت جاری رہے. میری کوئی تنخواہ تو ہے نہیں, میں اگر بول دوں گا میں نہیں بناتا تو کس نے کیا بگاڑ لینا میرا پیغامات. لیکن میرا اپنا جذبہ ہے, یہ کار ثواب ہے. ایک پیغام سے نہ جانے کتنوں کی دل جوئی ہو جاتی ہوگی, کتنے لوگ کو خوشیاں حاصل ہوتی ہوں گی الحمدللہ. نیکی کی دعوت بھی ہوتی ہے, اس میں روایت بھی سناتا ہوں, اور یہ سب ایک سسٹم کے تحت وہ ہوتا ہے ہمارا کام الحمدللہ. دعا بھی فرمائے کہ آخری سانس تک
मेरी जिंदगी के आखिरी दिन भी हो तो ये पैगामात मेरे ना छूटें, कभी छूटते हैं तो दूसरे दिन बोझ बढ़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान हो, शब बारात हो, धर्म मरने बीमार होने वालों का तो सिलसिला रहता ही है। दावत इस्लामी बहुत बड़ी है, दुनिया भर से पैगामात का सिलसिला। तो यूं मतलब ये कि रात में भी कुछ चाय पानी वगैरह खाता हूँ, चाय पानी करता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत वो रिफ्रेशमेंट खा पी भी लेता हूँ कुछ ना कुछ। तो यूं और ये पैगामात भी, और यूं फिर आता हूँ खुसूसी में, अक्सर लेट ही होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाह। तो आप भी अपने अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करेंगे, जो काम भी आ गया ना अपने जिम्मे, और उससे और पीछे नहीं हटा। अब जैसे मैंने खुद गले में ये काम पहना है, किसी ने मेरी ड्यूटी नहीं लगाई। पहले एक एक का बनाता था, अब ये टेक्नोलॉजी, पहले फोन पर करता था ताज़ियतें क़यादतें, तो फिर मेरे को बहुत मुश्किल हो जाती थी। बंदा मिला नहीं मिला, इतने बजे मिलेगा, अब उतने बजे। फिर बोला अच्छा अच्छा मेरे चाचू गमज़दा हैं तो इनको, हमारी अम्मी बहुत रोती हैं तो इनको ज़रा तसल्ली दे दें, तो ये थोड़ा मसला हो जाता था, देर हो जाती थी। फिर दोबारा फ़ोन आने शुरू हो जाते थे कि वो भाई आया है, उसको बात करनी है, वो भी बेचारा रोता है, अम्मी फोत हो गई हैं। तो इस तरह मतलब ये कि वो एक मुश्किल काम था। फिर ये मीडिया का दौर चला तो इसमें भी एक एक में बनाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये समझ पड़ी, कुछ मशवरे मिले, तो इस तरह एक अच्छा अंदाज हो गया है, आसान हो गया पहले के मुकाबले में। तो पहले तादाद भी कम होती थी, अब तादाद भी बढ़ती जा रही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो अगर दर्स आपके जिम्मे, अब नागा नहीं करना है, ना आशूरा ना ईद। अब आप दर्स कितनी देंगे यार, पंचतन के 5 मिनट भी आपसे नहीं दिया जाता दर्स, यार क्या है यार। तो ये रोज देना है, समझे। जो दर्स देते हैं, दर्स दे जो सुनते हैं वो भी रेगुलर सुने, जो नागा ना करें, ठीक है ना। और नमाज में तो नागा वैसे ही करना नहीं है, तो फर्ज है, ठीक है। और इसी तरह मतलब दीगर जो भी काम है, इलाकाई दौरा, मदनी काफिला, महीने में सिर्फ 3 दिन तो है यार, इसमें भी नागा, कभी कभी जाना कभी नहीं जाना। और बात तो है कि ऐसे भी बैठे होंगे जिन्होंने कभी जिंदगी में मदनी काफिले में सफर नहीं किया होगा, तो अब आप बोलेगा मात हो गए जिंदगी में कर दिया। ये वो मदनी काफिला नहीं है जो जदवल के मुताबिक होता है, वो एक अलग है। तो उस मदनी काफिले है, ये मदनी काफिला काउंट भी नहीं होता। इस तरह जो 3 दिन के लिए तशरीफ लाते हैं, तो वो अपना एक अलग सिस्टम बना हुआ है, तो उसके मुताबिक मदनी काफिला। जैसे बाहर मुल्कों में किसी हाजी इमरान वगैरह के साथ तशरीफ ले जाते हैं, तो वो भी मदनी काफिला नहीं कहलाता। मदनी काफिला मजलिस ने जो हमको तरीके कार दिया है, उसके मुताबिक 3 दिन मस्जिद में बैठते हैं। या जहाँ मस्जिदों की तरकीब नहीं होती बाहर मुल्कों में, किसी की वर्कशॉप में, किसी के मकान में, इस तरह भी तरकीबें बनाई जाती हैं इंद जरूरत के मुताबिक, तो वो मदनी काफिला कहलाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे के ताल्लुक से मैं ये अर्ज़ करूँगा, एहसास की बात अमीर सुन्नत अभी फरमाई है। मुझे ये अभी जो पिछले चंद माह पहले जो अमीर सुन्नत का सफ़र हुआ, सफ़र मदीना, उसमें मैं चाहूँगा अमीर सुन्नत इसका इज़हार करें कि उसमें मदनी मुज़ाकरे के ताल्लुक से आपने क्या फरमाया था। और इसमें मेरी नीयत ये है कि जो इस्लामाबाद मदनी मुज़ाकरे के ताल्लुक से छुट्टी कर लेते हैं, नहीं आते हैं, कभी नहीं आते, कभी मतलब वो नहीं है, फीलिंग नहीं है कि यार मुझे मदनी मुज़ाकरे में पहुँचना है और मेरा मदनी मुज़ाकरा ना छूटे। इस नीयत से मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, मेरे इस हवाले से अपना वो इरादा और अपनी वो नीयत इरशाद फरमाएं। मैं शुरू के अल्फाज थोड़ा जहन में सफ़र मदीना के ताल्लुक से, सफ़र मदीना, हाँ, कि भाई मैं इतने दिनों का, और इसकी वजह ये 5 दिन का पैकेज रखा था, और उसकी वजह सफ़र मदीना, उमरा शरीफ मदीना, कि यार यानी कि हम इस तरह जाएं कि हमको मतलब यानी कि मदनी मुज़ाकरा, अगर जन्नतुल बकी में जगह नहीं मिलती, दाखिला नहीं मिलता, कभी गया नहीं मैं जन्नतुल बकी में, मैंने एक ही बार जाऊंगा, फिर नहीं निकलूंगा इंशाअल्लाह। फिर वो जन्नत में
इंशाअल्लाह आका के सदक़े में। तो अगर जन्नत अल बकी की तरकीब नहीं बनती है तो फिर हफ्ते का मदनी मुज़ाकरा, जो वहाँ हम मदनी मुज़ाकरा नहीं कर सकते, वहाँ इस तरह का नहीं है मामला। तो ये कि फिर हमने जुम्मे को हम निकल आए, जुम्मे को रात को निकले। आप हफ्ते की सुबह पहुंचे? हफ्ते की सुबह अपने, जहाँ मैं दूसरे मुल्क में था खदीज में, तो वहाँ हम पहुँच गए हफ्ते को सुबह। फिर रात को मदनी मुज़ाकरा इसी तरह लाइव अपने रिले जो होता है वो हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि मेरा मदनी मुज़ाकरा कज़ा ना हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बुखार का आलम होता है, नज़ले बहरे होते हैं, तबीयत बाजू का नहीं होती सेट, मैं बैठा रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती कि इज़हार भी नहीं होने देता, क्योंकि वो यक बुढ़ापा और सद ऐब, एक बुढ़ापा 100 बीमारियाँ। अब मुझे बोलता आपकी तबीयत कैसी है, तो मैं बोलता हूँ कभी कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल दामन मुस्तफ़ा तो में, और सुनाइए सब ठीक है। अब तो चुप हो जाता हूँ, मैं क्या बोलूँ अभी यार। मैं अगर अपनी फाइल खोलूँगा ना, ये मेरे यूं भी होता है और यूं भी होता है, इधर भी दुखता है इधर भी दुखता है, तो इसको भागते बनेगी, समझे। तो इतना पूछते हैं बाज़ औक़ात के। चुटकुला मुझे कभी कभी सुनाता हूँ कि हॉस्पिटल के बाहर में आया था, एक हॉस्पिटल में अपने कोई एक्सरे या किसी बाहर मुल्क में, तो वहाँ भी लोग तो जानते होते हैं ना, तो कोई मिल गया वहाँ हॉस्पिटल के बाहर, अभी पहुंचे थे हम, शायद गाड़ी से उतरते। तबीयत कैसी है, मैं डॉक्टर के पास आया हूँ और ठीक है सब खैर है। अब आप बताओ, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर के पास आया हूँ, तब भी वो बेचारे समझ नहीं रहे थे। अब मैं क्या करूँ यार, मेरे को फाइल खोलते हुए मजा नहीं आता खुद कि मुझे यूं होता है यूं होता है यूं होता है। नहीं मतलब जमता नहीं है, और बोलना भी नहीं चाहिए बिला ज़रूरत किसी को। जब फिर इन्हें अपना अजर व सवाब चला जाए, हम गिले शिकवे में पड़ जाए, बेसब्रों में हमारा नाम आ जाए, तो अल्लाह शिफा देने वाला, बंदे को बताएंगे उसने कौन सा ठीक कर देना। हाँ डॉक्टर को बताए, या वाकई कोई ऐसा है कि जिसको हम बोलेंगे तो उसका दिल खुश हो जाएगा। बाज़ों का होता है कि उसको इतनी हमदर्दी होती है, उसको अपडेट चाहिए कि क्या है, तो यूं भी होता है। हमारे मुफ्ती साहब हैं, हमारे नाम नहीं देता, हमारे मुफ्ती साहब हैं, पूरे मुफ्ती हैं, वो इतनी शफकत करते हैं। ये मुझे शायद एक से ज़्यादा बार कह चुके हैं, आप अपनी तबीयत से आप मुनासिब समझ मुझे बता दिया करें जरा, आजकल कैसी तबीयत है। वो बेचारे इस तरह करते, तो कभी कभी मैं इनको डिटेल दे भी देता हूँ कि यार इनकी इसमें दिल जो ही है, फिर ये दुआ करेंगे मेरे लिए, तो ये भी मेरे लिए आफियत। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ इस्लामी भाई भी इस तरह के हैं कि जो इंटरेस्टेड होते हैं कि मेरी तबीयत इनको पता चलनी चाहिए क्या हो। तो अब जितनी ज़रूरत है इतनी आदमी बता दे, हर बात फिर भी बाज़ औक़ात बतानी नहीं होती, या जी नहीं चाहता बताने का, या मुनासिब नहीं लगता। बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल भी इंसान के साथ तो वारिद होते हैं। हाँ तबीब को बताना वो ज़रूरत होती है तो आदमी बताते। अब मेरी माँ तो है नहीं जो मैं इसको बताऊं, बाप नहीं है, सब दुनिया से चले गए, और किस किस को बताऊं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और हर एक इंटरेस्टेड होता भी नहीं, मैं सही बोलता हूँ। हम बोलेंगे ना कि यूं होता यूं होता, वैसे नाक कटेगी कि मतलब अगर नाक होगी तो कटेगी, ऐसा मतलब ये मतलब माहौल है। खाली पूछते हैं तबीयत, इनमें इतना हौसला नहीं होता कि ये सारी डिटेल सुने, बिल्कुल रस्मी पूछते हैं। ये बिल्कुल जबान में चढ़ा हुआ है, हाथ मुलाकात, क्या हाल है, अच्छा सोती पैगाम आएगा उसमें सलाम वालेकुम क्या हाल, ठीक है तभी ठीक है, हाँ तो वो करके वो सुने। एक बिल्कुल अगर ये भी रस्मी नहीं तो रस्मी किसको बोलते हैं, क्या जरूरत है, फजूल है बिल्कुल, इसका फायदा क्या, कैसे हो, ठीक है करके फिर अपनी बात शुरू कर दी। इसको बताने की जरूरत भी नहीं होती कि मैं ठीक हूं या नहीं ठीक हूं, ना उसने बाद में पलट के पूछना है कि आपने तबीयत नहीं बताई। तो एक आदत है, लेकिन हरज नहीं, नाजायज नहीं है, बल्कि बाजू का अच्छा भी लगता है आदमी को, सलाम वालेकुम, अच्छा तबीयत कैसी है, अच्छे होना भाई, ये एक आध दो अल्फाज कह दिए तो ठीक है, बाकी बिल्कुल बार बार ठीक है, कैसे हैं, खैरियत है, सब बच्चे ठीक हैं, फलां बच्चा ठीक है, अम्मी की तबीयत कैसी है, तो ये इतनी डिटेल बाजू का नहीं मतलब जमती। मौके की मुनासबत से आदमी पूछे, या पहले से बीमार था हमें हमदर्दी है वाकई, उसको पूछ लिया कि आप भाई क्या आपकी तबीयत, वो एक अलग सूरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद,
ये आपके काम के मदनी फूल हैं, हाँ? बहुत काम आएंगे अगर इसको गिरे से बांध लोगे ना। बहुत सारी बोरियत से, बहुत सारे गिले शिकवे और बेसब्रियों से इंशाअल्लाह बच जाएंगे आप। इमाम गजाली ने ये सब बातें इस तरह की लिखी हैं। किसी बुजुर्ग को किसी बुजुर्ग के मुंह से निकला अब कैसे हैं, तो उसने कहा कर्जदार। ठहरो। तो वो घर गए और अपने बच्चों की अम्मी के पास रकम थी ना, बोला मुझे दे दो। उन्होंने दे दी। उन्होंने लाकर उनको दी। एक कर्जदार हूं और घर में फाका है, इस तरह का कुछ इन्होंने बताया कि इससे ये कर्जा उतार लो, ये रकम बच्चों के लिए कुछ राशन वगैरह ले लो। खैर इस तरह उनकी मदद कर दी इन्होंने। और फिर फरमाया कि आइंदा किसी को तबीयत नहीं पूछूंगा। तबीयत पूछे और जब वो अपनी परेशानी बयान करे और अपने बस में होने के बावजूद उसकी परेशानी दूर ना करे, तो इस तरह खाली खाली इनकी तबीयतें पूछना ये मुनाफकत है, हमदर्दी तो है नहीं इससे। ये बुजुर्गों की इतना अजीब और गरीब सोचें, तो ये पढ़ पढ़ के मेरी भी सोचें बनी है बुजुर्गों से। आप एहयाउल उलूम पढ़े तो आप पागल हो जाएंगे। तो एक मुहावरा है, पागल हो जाएंगे। यार तो मुझे ही समझा रहे, ये सारे धंधे मेरे हैं, सारे करतूत मेरे हैं, मेरे को कान पकड़ के समझा रहे हैं यूं भी नहीं होना चाहिए, यूं भी नहीं होना चाहिए, यूं भी नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह फरमान है हजरत सुलेमान बिन मेहरान आगमश रहमतुल्लाह अलैह। आजकल एक शख्स अपने दोस्त से मिलता है, उससे हर शय के मुतालिक पूछ डालता है, यहाँ तक कि घर में मौजूद मुर्गी तक की खैरियत पूछ डालता है, लेकिन अगर उसका दोस्त उससे 1 रुपया मांग ले तो नहीं देता। हवाला कुतुल कुलूब जिल्द 2 पेज नंबर 20 बतगय्युर कलील। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये बतगय्युर कलील किसी किताब का नाम नहीं है, यानी कि ये जो कॉल है ना, इसमें जिन्होंने बनाया है ना, ये उसमें कि हमने थोड़ा सा इसमें अल्फाज की तब्दीली की है, ये मतलब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे मेरे अहले सुन्नत, कुछ रोज़ पहले ये जिक्र हो रहा था कि आप और निगरान शूरा करेले का जूस भी पीते हैं, तो हमें भी इरशाद फरमा दीजिए कि ये करेले का जूस कैसे बनता है, कितने करेले दरकार होते हैं और इसको बनाने की क्या रेसिपी है। जज़ाकल्लाहु खैरा। वाह भाई वाह, तो करेले का जूस दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कैसे बनता है। क्या शान है आपकी भी। दिखाया देखने में कितना अच्छा लग रहा था। बच्चे बालों का लपकेंगे, रखा भी बहुत अच्छे तरीके से। अगर इसको रुलाना है तो फिर थोड़ा चखा दो और क्या। ये एक करेला मीडियम साइज का लें, 2 गिलास पानी, और ये जूसर मशीन जो होती है, जूसर मशीन या जूसर काफी है ना, इसको मशीन लफ्ज बोलने की जरूरत नहीं है, जूस निकालने वाली ग्राइंडर मशीन ग्राइंडर मशीन कहलाती है। नहीं ग्राइंडर काफी नहीं है, नहीं जूस मशीन करने वाली, नहीं जूसर मशीन सही है। हाँ जूसर, जब मशीन बोलना पड़ेगा बोल दें तो। वैसे दोनों साथ ही चल रहा होता, मुझे भी इतना नहीं पता। मुझे जायद लगता है ये लफ्ज जूसर, जूस निकालने वाला। ओके। हाँ, तो जूसर में 2 गिलास पानी और करेले के पीस करके, इसके बीज वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें से कुछ भी ना निकालें, ये टुकड़े करके इसमें डाल दें और अब मशीन अपना काम करेगी। अब ये निकल आया सारा। अब इसमें कुछ गाढ़ापन भी होगा। अगर आप पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, एक गाढ़ा गाढ़ा जो है नहीं भी पी लें, मैंने पिए, क्योंकि ये भी आखिर ग़िज़ा है। अगर नहीं पिया जाता तो फिर छान के पी लें। और वो जो गाढ़ा गाढ़ा निकला, इसको मेरे ख्याल में तो फेंकना मुनासिब नहीं लगता, इसको अपने किसी सालन में और तरकीब बना लें, मगर है मुश्किल। इसको सालन में डालेंगे तो सालन का जो भी टेस्ट होगा ना, नहीं इसका हल है। क्या हंस रहे आप लोग यार, वो नींबू डालो इसमें, देखो
कड़वाहट कवर हो जाएगी, दही डालो इसकी कड़वाहट कवर हो जाएगी, बेहतरी आ जाएगी इसमें। तो खैर तो फेंक ही दिया जाता है आमतौर पर, तो बहुत कुछ फेंक देते हैं। तो ये इस तरह अगर आपने जूस निकाल लिया ना, ये तो 2 गिलास में यूं के मतलब वो कुछ वो जब छानेंगे ना तो जो भी इसका निकलता है मलगोबा या जो भी है उसमें पानी रह जाता है। तो अगर आप वो सारा गाढ़ा गाढ़ा पीना चाहते हैं तो चाहे तो 1.5 गिलास कर दें। देखो वो आप जब 1-2 बार करेंगे ना तो आपका हाथ बैठ जाएगा कि कितना पानी इसमें डालना है। फिर करेले की साइज है भी कहीं छोटी होती है कहीं बड़ी होती है, तो मीडियम साइज। बड़ा भी अगर पीना चाहें तो नो प्रॉब्लम। हमने मालूम किया कि अगर उम्र भर पिए जैसे तो इसका साइड इफेक्ट भी बताया गया कि नहीं है, पीते रहें। एक टाइम खाली पेट, मैं खाली पेट पीने की मेरी कोशिश होती है, तो ये खाली पेट इसको पिए। और इंशाअल्लाह इसमें कैंसर से रोकने का भी सलाहियत है, शुगर कंट्रोल करता है, और मैंने तो इसको एंटी एलर्जी भी महसूस किया है। मैंने बाद चीज़ें जो मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता था ना, इसके बाद मैंने उसमें कुछ रियायत पाई है। अब वो इस्तेमाल थोड़ी बहुत कर लूँ तो हो जाती है, साइड इफेक्ट नज़र नहीं आता। ये इसके अलावा इसकी तो बाकायदा यानी कि फहरिस्त हैं। वो मानावा फैज़ान मदीना अप्रैल 2017 2017 का निकाह से 6 साल पुराना मानामा फैज़ान मदीना तकरीबन। करेला और उसके फवाइद, करेले के चंद तिब्बी फवाइद सुनिए। करेलों में कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन बी, सी के साथ फौलाद की वाफिर मिकदार, यानी बहुत मिकदार में वाफिर मिकदार पाई जाती है, काफी इसमें मतलब मिकदार होती है। करेला सबसे ज्यादा ज़ियाबेतुस यानी शुगर के मरज में मुफीद, यानी करेला शुगर के मरीज के लिए काफी मुफीद है। शुगर के मरीज इसे धोकर बगैर छीले या कीमे के साथ या तवे पर सेंक कर या खुश्क करके इनका सुफूफ यानी पाउडर बनाकर रोजाना 2 ग्राम खा लें। करेला मोटापा कम करता है। करेले की कड़वाहट के सबब इसमें ऐसे खवास यानी खासियतें, खूबियां हैं जो खून को साफ करते हैं। फोड़े, फुंसी, खारिश या जल्दी अमराज में करेला पकाकर या कच्चा खाना बहुत मुफीद है। करेला मैदे को मजबूत करता, खाना हजम करता और भूख लगाता है। आसाबी तवानाई के लिए करेला एक उम्दा टॉनिक यानी नुस्खा है। पेट के कीड़े मारने में इसका कोई सानी, इसका कोई जवाब नहीं। करेले का इस्तेमाल गुर्दे और मसाने की पत्थरी खारिज करने, यरकान, जिरियान, लकवा, फालिज, कब्ज, जोड़ों के दर्द, बलगमी अमराज, हैजा और बवासीर में मुफीद है। माखूज अज फलों, फूलों और सब्जियों से इलाज, पेज नंबर 351। या जूस का तस्करा नहीं है, लेकिन जूस के भी फवाइद मैंने अर्ज किए, वो भी अपनी जगह पर, और भी मैंने कुछ गौर किया तो और भी मुझे फायदे हुए हैं इससे। पहले में खारिशों का मुझे ज्यादा होता था, तो परेशानी होती रहती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी गर्मी खारिश के बगैर गुजर रही है अल्लाह की रहमत से। शायद ये भी करेले के फवाइद हैं और सब्जियां खाने के फवाइद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नज़ला गाये होता ही रहता था, अब इसका पीरियड काफी बढ़ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी इसी की बरकत मुझे लग रही है, अल्लाह की नेमत है। इसको जरूर आप अगर कोई मुश्किल ना हो तो ईसाई भाई ईसाई बहनें इसको ट्राई करें, ये नहीं कहूँगा, इस्तेमाल करें। तो बात वो समझ जल्दी नहीं पड़ेगी, देर में फायदा हो जाएगा। अमराज आते आते जो पक रहे होंगे वो रुक जाएंगे, इसका पता नहीं चलेगा। अल्लाह करीम आफियत नसीब फरमाए। ब्लड प्रेशर के मरीज भी इंशाअल्लाह इससे इस्तिफादा कर सकें। उम्मीद है कि इनको भी फायदा होगा इंशाअल्लाह करीम। लेकिन ब्लड प्रेशर के बारे में कोई पढ़ना मुझे याद नहीं है कि फायदा करता है।
अपने तौर पर अर्ज किया मैंने। तो ये है बहुत प्यारी चीज़ है, और मैं तो सही बात है कि मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, भागता नहीं है। पहली बार में तो आपको ज़्यादा दुश्वारी महसूस होगी, दूसरी बार कम, फिर तीसरी बार आहिस्ता आहिस्ता आप इसके आदी हो जाएंगे। मैं आदी हो गया तो इतना प्रॉब्लम नहीं, तो पी लेता हूँ। फिर चाहे तो कोई मीठी वो चीज़ मतलब खा ली, इसके ऊपर खजूर खा ली, शहद चाट लिया अगर चाहे तो कड़वा अगर मुंह में है भी तो वो चली जाएगी, नहीं तो खुद भी चलिए पानी पी लें यूँ करके, तो इंशाल्लाह ये भी फर्क पड़ जाएगा। देखो 2 के गिलास को पीना तो है ना, वरना उसमें रह जाएगा तो यूँ फेंका जाएगा जैसे आवाम फेंक देते, नहीं, एक कतरा भी जाया क्यों। तो इस तरह मतलब इंशाल्लाह आप पिए, अल्लाह करेगा तो आपको फायदे नजर आएंगे। गैस का दुनिया का कोई चूरन इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जिसको गैस का मर्ज हो वो फायदा उसको देख लेगा उसका इंशाल्लाह। अच्छा, आपको ये कब्ज नहीं होने देगा इंशाल्लाह, पेट आपका क्लियर। लेकिन ये कि दूसरी ग़िज़ाएं बाज़ ऐसी होती हैं कि जिससे ये मतलब मुकाबला करने में थोड़ा कमज़ोर साबित होता है। बाज़ ग़िज़ाएं सिखाई जाती हैं। अब जो लोग खाते हैं वो पराठे और मलाइयाँ और क्या क्या खा रहे होते हैं, हलवे, तो ये चीज़ें ज़ाहिर है कि पेट फिर जब सख्त हो गया तो फिर थोड़ा मुश्किल। तो खाएं भी वो नरम चीज़ें, सब्जियां वगैरह खाएं। स्टीम में उबली हुई सब्जी अगर कच्ची खाएं तो ज़्यादा फायदा है। स्टीम की उबली हुई सब्जी खाएं तो 60 या 80% फायदा रह जाता है बताते हैं, और अगर पक्की हुई खाएं उबली हुई यानी स्टीम से उबली हुई तो 60 या 80 गालिबन इसका फायदा रहता है। और फिर अगर उबली हुई खाएं तो और कम हो जाता है, पक्की हुई खाने से ज़्यादा और कम हो जाएगा, उससे तेल मसाले वगैरह डालें तो फायदे। लेकिन बहरहाल फायदा है सब्जी खाने में, खानी चाहिए। सब्जियां लोग नहीं खाते, आमतौर पे कम इस्तेमाल होता है। भले महंगी हो जाए आप खाओ यार, भले महंगी हो जाए, फायदे वाली चीज़ है। ज़रा सब खाएंगे तो महंगी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। इसका इस अल्लाह की नेमत है। सर्दियों में सब्जी तरह तरह की आती है और सीज़न है सब्जी खाने का, इसका मतलब सर्दियों में सब्जी ज़्यादा मुफीद है। ये कुदरती निज़ाम है, जो चीज़ें ज़्यादा मुफीद होती हैं जिस मौसम में वो उसकी बहारें होती हैं, उस मौसम अल्लाह की रहमत, उसका करम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के कई शहरों से हमारे आशिकान गरीब नवाज़ फैज़ान मदीना में आकर यहाँ की बरकतें लूट रहे हैं। और हमारे पास जो इतला है वो मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, राहवाली, सियालकोट, नारोवाल, बहाउद्दीन, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, हाफिज़ाबाद, वज़ीराबाद, गुजरात, कश्मीर, झंग, आरिफ वाला, पाकपतन, मुल्तान, फैसलाबाद, बलूचिस्तान, सरगोदा, अटक, कामरा, हज़ारा, लाहौर, भावल नगर, गिलगित और शेखुपुरा, और भी कराची के भी आज हफ्तार इज्तिमा के आशिकाने गरीब नवाज जो है वो यहाँ पर जमा है और इंशाअल्लाह उल करीम यहाँ की बरकतें लूट रहे। रजब में ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हो मदीने का टिकट मुझको अता दाता पिया, आपको ख्वाजा पिया का वास्ता दाता पिया। अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि इस शेर को लिखते हुए, दाता साहब की मनकबत लिखते हुए आपने ख्वाजा साहब का वास्ता ही क्यों दिया? ख्वाजा पिया और दाता पिया, ये दोनों का कुछ इस तरह रिलेशन बनता है कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह दाता हुजूर के मज़ार पर आपने 40 दिन रहकर इक्तिसाब फैज़ किया, वहाँ चिल्ला किया, इबादत की। तो यूँ मतलब ये कि अब वो इक्तिसाब फैज़ मेरे मुंह से निकला, मतलब अरे वहाँ आकर इबादत की, तो उसकी अभी तक चिल्ला गाह बनी हुई भी है वहाँ, जिन्होंने देखा बहुत सोने ज़ियारत की होगी। तो यूँ मतलब ख्वाजा साहब का और इनका तो दाता हुजूर के कदमों में जाए आदमी तो ख्वाजा पिया याद आ ही जाए।
कि वहाँ इनकी चिल्ला का मौजूद। तो इस तरह मतलब ख्वाजा पिया का वास्ता, तो गौस पिया का वास्ता भी दिया जा सकता है, सरकार का वास्ता भी दिया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं इसमें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबही व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबही व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, जो किसी मजलिस यानी बैठक से फारिग होकर ये अब जो पढ़ेंगे वो दुआ 3 बार पढ़ ले तो खताएं मिटा दी जाती हैं। और जो मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रजब शरीफ में ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन से सवालात और उनके जवाबात, आइए देखते हैं। 25 जनवरी 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, इस्लाम में कितने मुजतहिद मुतलक हुए हैं? जवाब 100 से कुछ ज्यादा। सवाल नंबर 2, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने खादिम को भेजकर जिस तालाब को लोटे में बंद कर दिया था उस तालाब का नाम बताइए। जवाब अना सागर। सवाल नंबर 3, पहले 3 दिनों के अलावा रजब शरीफ के बाकी दिनों का रोजा कितने अरसे का कफारा है? जवाब 1 महीने का कफारा है। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: फारूक अहमद अत्तारी, भक्कर, उम्मे हसनैन, पीर कॉलोनी, कराची, बिनते इकबाल अत्तारिया, पाकपतन शरीफ, अहमद अयान अत्तारी, तोनसा शरीफ, गुलाम रसूल मुमताज, मुल्तान शरीफ, उस्मान शरीफ अत्तारी, कमालिया, मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक अत्तारी, सादिकाबाद। इन सेलेक्टेड नामों में से कुरान अंदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम उम्मे हसनैन, पीर कॉलोनी, कराची। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशा अल्लाहुल करीम। रजबुल मुरज्जब 1444 हिजरी नफल रोजों की नियतें। मजमूई कारकर्दगी 7 नफल रोजों की नियतें 37,635 37,635। 5 नफल रोजों की नियतें 35,910 35,910। 3 नफल रोजों की नियतें 72,408 72,408। आज जो मदनी मुज़ाकरा हुआ इसमें भी जो सवालात
آپ نے جوابات دینے ہیں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، اور کل اذان عشاء تک اس کو جو ہے وہ آپ سوالات کے جوابات بذریعہ SMS جو بھیج سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام نمبر نہ لکھیں، محرم کا نام لکھیں، اور نام کی جگہ کنیت ام فلاں یا بنت فلاں لکھیں۔ سوال نمبر 1، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کن بزرگ کے مزار پر 40 دن گزارے؟ سوال نمبر 2، کریلے کھانے سے جن بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے ان میں سے کوئی ایک بتائیے۔ سوال نمبر 3، مسجد میں معمولی سا تنکا پھینکنے سے مسجد کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ ان سوالات کے جوابات آپ بذریعہ SMS جو ہے وہ ہمیں کل اذان عشاء تک بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ ماہ رجب کے جو روزے رکھنے کی جو تحریک جاری ہے، ہمیں جو کارکردگی ملی ہے جامعۃ المدینہ میں بھی ماشاءاللہ الکریم اس کا سلسلہ جاری ہے، اور پاکستان جامعۃ المدینہ بوائز کی جو کارکردگی ملی، روزہ رکھنے والے تیسری رجب کو 10,340، جبکہ تہجد ادا کرنے والے طلبہ 8,121۔ اسی طرح جیلوں میں بھی جو ہمارا دینی کام ہے، تو ہماری جو اصلاح برائے قیدیان مجلس ہے، انہوں نے بھی اپنی کارکردگی بھیجی ہے، جس میں قیدی ہیں، آفیسرز ہیں، اسٹاف ہے، اور جو دیگر ریلیز جو پرزنر قیدی جو رابطے میں ہوتے ہیں، تو الحمدللہ 1542 پہلی رجب کو 1542 نے روزہ رکھا، دوسری رجب کو 1724 نے روزہ رکھا، اور تیسری رجب کو جو کارکردگی ملی وہ 1238۔ یہ ماشاءاللہ ان کی بھی کارکردگی ہمیں ملی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں، اور جو اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرما۔ سارا جو ثواب جناب رسالت باب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارا ثواب مزید ان کو عنایت فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین و محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، بالخصوص والدین مصطفیٰ، حسنین کریمہ، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی الحاج محمد فاروق، مفتی محمد فاروق، اور حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور جو 6 مسلسل مدنی مذاکرے دیکھیں اور کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھیں، یا مدنی چینل پر دیکھیں یا سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ پاک، ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ اے مولا، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے زخمیوں کے زخم دور ہو جائیں، جن کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں جڑ جائیں، جن کے فریکچر ہوئے ہیں وہ بھی صحیح ہو جائیں۔ اے اللہ پاک، جن کو روحانی امراض ہیں، عصب کے شکار ہیں، جادو ٹونا جن پر ہوا ہے، سب صحت یاب ہو جائیں، سب پر رحمت کی نظر ہو جائے۔ اے اللہ پاک، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو جائے۔ یا اللہ پاک، جو بیٹوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹے، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹے عطا فرما۔ الہ العالمین، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے۔ رب کریم، رب کریم، جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں، مظلوم قیدی رہا ہو جائیں۔
घरेलू नाचाकियाँ ख़त्म हों, आपस में मोहब्बतों के रिश्ते उस्तवार हों, सास बहू के झगड़े ख़त्म हों, मियाँ बीवी के झगड़े ख़त्म हों। ऐ अल्लाह पाक सब अमन से प्यार मोहब्बत के साथ तेरे महबूब की सुन्नतों पर अमल करते हुए अपनी जिंदगियां गुजारें। आमीन। बिजाहे खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहते रहते हैं, दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। करम मौला रहम मौला करम मौला रहम मौला तू बस रहना सदा राज़ी नहीं है ताबे नाराज़ी अल्लाह तू बस रहना सदा राज़ी नहीं है ताबे नाराज़ी तू ना खुश जिससे हो बर्बाद है तेरी कसम मौला करम मौला रहम मौला करम मौला रहम मौला अता कर आफियत तू नज़र और क़ब्र हश्र में या रब अता कर आफियत तू नज़र और क़ब्र हश्र में या रब वसीला फातिमा ज़हरा का कर लुत्फ़ो करम मौला करम मौला रहम मौला करम मौला रहम मौला इलाही पुल सिरातिक पल के अंदर पार कर जाऊं इलाही पुल सिरातिक पल के अंदर पार कर जाऊं तू कर ऐसी इनायत अज़ पाए शाए हरम मौला करम मौला करम मौला रहम मौला रहम मौला इबादत में रियाज़त में तिलावत में लगा दे दिल अल्लाह इबादत में रियाज़त में तिलावत में लगा दे दिल रजब का वास्ता देता हूँ फरमा दे करम मौला करम मौला रहम मौला करम मौला रहम मौला अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहे खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी
یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، قل یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اول و آخر تم آقا، باطن و ظاہر تم آقا، حافی حاضر و ناظر تم آقا، طیب و طاہر تم آقا، یا حبیبی یا رسول اللہ. قل یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی، یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا. تمہارے خواجہ میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا. خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا. بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا. میں خدا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا. دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو، دل سے دنیا کی محبت
وقت کی مصیبت دور ہو، دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا، خواجہ پیا، دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا، خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا، مدنی مذاکرات